Jainam, Avik, Vaibhavi. Video should be on, else will be out. Come on. Very important part I'm going to discuss. Two important sums. 24th sum. What is the current year? Looking at the receipt and payment account, can you tell me what is the current year? Ten 11. 10-11 is the current year. बराबर है? 2011. 31st March 11 is the current year. And balance sheet as on 31st March 11. बराबर है? Okay. Now looking at the question, can you guys tell me, are you supposed to make any balance sheet of last year? Is there any need to make balance sheet of last year? Think and tell. No. लास्ट ईयर का बैलेंस शीट बनाने की कोई जरूरत है कि नहीं है बताओ. No. No need. No need to make last year's balance sheet. Okay. Why you need not make last year's balance sheet? Because capital fund is provided in this sum. Look at it carefully. In the additional information, they have given you in point number 5, capital fund at the beginning, one for 2010, that was 8,61,800. Okay. Capital fund दिया हुआ है, closing capital fund missing है. Why is the closing capital fund missing? ये साल का सरप्लस और वो सब ऐड करके हम लोग ढूंढेंगे. Exactly. ये साल का सरप्लस, लाइफ मेंबरशिप फीस, डोनेशन सब ऐड करके मिलेगा आपको. बराबर है? सिमिलरली बिल्डिंग फंड शुरू में 4 लाख दिया है, एंडिंग में मिसिंग है. उसमें भी कोई डोनेशन इंटरेस्ट हो सकता है, फंड का इनकम हो सकता है. ठीक है, तो वो ऐड करके अपने को क्लोजिंग मिलेगा. सो बेसिकली ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है. ये सब में नहीं बनाओगे चलेगा. स्टिल जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन सेक आई विल मेक इट. ओके. ओपनिंग बैलेंस शीट भी मैं बना रहा हूँ नीचे. ये सब में ओपनिंग बैलेंस शीट का कोई जरूरत नहीं है बिकॉज कैपिटल फंड दिया हुआ है. ठीक है. स्टिल जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैं लिख रहा हूँ ऑप्शनल बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 10. 31st March 10 लिखो या 1410 लिखो, एक ही बात है. ठीक है. Still I am making it just for the information so that you can verify your capital fund. ठीक है. Let's start with the payments. Answer quickly. Furniture कहाँ जाएगा? Asset. Assets. Furniture are assets. Others also answer. Medicines where you will write medicines. Expense. Medicines are expense. It's a hospital. Okay. Hospital, charitable, clinics, trust. Okay. Municipality hospitals and all. Medical center, medicine center, ये सब आपका मेडिसिन आपका एक्सपेंसिव होने वाला है हर बार. ऑनोरेरियम टू डॉक्टर्स, व्हाट इज दैट? दैट इज आल्सो एक्सपेंस. ऑनोरेरियम आपको बताया था, विजिटिंग डॉक्टर्स को आप स्पेशल एक्सपर्टीज शेयर करने के लिए पे करते हो. ये मंथली बेसिस नहीं है. देन यू हैव सैलरी टू स्टाफ, दैट इज आल्सो एक्सपेंस, राइट? सन्ड्री एक्सपेंस इज आल्सो एक्सपेंस. सर्जिकल इक्विपमेंट क्या होगा आपका? Assets. सर्जिकल इक्विपमेंट्स आर ऑलवेज एसेट्स. सर्जिकल इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट आर ऑलवेज. बताया था इक्विपमेंट थोड़े बड़े अमाउंट के होते हैं, इंस्ट्रूमेंट थोड़े छोटे वैल्यू के होते हैं. ठीक है, बट बोथ आर एसेट्स. फिक्स्ड डिपॉजिट्स आर व्हाट? एसेट्स. इन्वेस्टमेंट, they are also asset. Balance carried down is this year's asset. Closing balance is this year's asset. Opening balance will go where? Opening balance will go to last year's asset, right? Opening balance will go to last year's asset. Subscription, एक ही सब्सक्रिप्शन दिया है, कोई ईयर वाइज डेटा नहीं दिया है. So where do you put this subscription? Income. This subscription goes to income. Correct. समझा? यहाँ पे अभी एक ही सब्सक्रिप्शन है, इसका मतलब क्या है? सभी टाइप के एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे कि खाली प्लस वाले करने पड़ेंगे कि खाली माइनस वाले करने? सभी टाइप के. ऑल एडजस्टमेंट. एक ही सब्सक्रिप्शन दिया मतलब वो भेलपुरी है, मिक्सचर है.
वो रोकड़ा मिला है, ये साल आपको इतना रोकड़ा मिला है, दिस मच कैश यू हैव रिसीव्ड, राइट? So this cash may belong to last year, may belong to next year. It may include anything. Okay, so you never know. So remember that this subscription, filhal you put it under income, and then we'll do the filtration process to bring out the current year's actual income, earned income. Okay, so this is filhal you put it under income. Okay, entire subscription income में फिर adjustments करेंगे. Entrance fees के बारे में कुछ information दी है? Please read, check. Entrance fees. Is there any information? No. No. In that situation, what are you supposed to do? Liability. Capitalize, add to capital fund. Add to capital fund under liability. Is that clear? So entrance fees, कुछ information नहीं है तो capitalize. Only three things you are going to put it under income. That is donation, subscription, and grant. Nothing is specified. Donation, subscription, grants will be income. Apart from that, everything capitalized. Okay? Then you have life membership fees. Life membership fees needs to be capitalized. दिया हुआ है. As it is capital fund में ही डालते हैं हम लोग, नहीं भी दिया होता तो भी. Sale of newspaper. Sale of old newspaper कहाँ जाएगा? Where do you put sale of newspapers? Income. That's also income. Sale of newspaper is income. Donation for building fund. Donation for building fund means what? What are you supposed to? Add to building fund. Add to building. Exactly. Add to building fund. Already, do you have any building fund? Yes. Yes. So you can add it. Last year से आ रहा है building fund. Long term है तो उसको add कर दो. Basically क्या है, building fund के लिए पैसा इकट्ठा हो रहा है. Last year तक कितना इकट्ठा हो गया था? 4 lakhs. ये साल और 120 आया, फंड में ऐड हो जाएगा. और सामने बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, तो अगर बिल्डिंग रेडी है तो बनाने का रेडी है तो इन्वेस्टमेंट बेच के आप बिल्डिंग बना सकते हो. मतलब यू कैन सेल द इन्वेस्टमेंट, गेट द मनी एंड मेक द बिल्डिंग. तो इन्वेस्टमेंट सेल कर दोगे, कैश टू इन्वेस्टमेंट, और बिल्डिंग बना दोगे, बिल्डिंग टू कैश. जब तक बिल्डिंग नहीं बना आप उसको इन्वेस्ट करके रख सकते हो बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में, एसेट साइड पे. बेसिकली वो फंड का पैसा सिर्फ बिल्डिंग बनाने के लिए यूज करना है और कहीं यूज नहीं करना. दैट्स एन एंडाउमेंट फंड. दैट्स एन एंडाउमेंट फंड. तो बिल्डिंग फंड तो लायबिलिटी में जाएगा, और कोई डोनेशन आया, कोई इंटरेस्ट आया उसी फंड के इन्वेस्टमेंट पे, तो ऐड टू बिल्डिंग फंड. ओके, फंड का फंडा बहुत सिंपल है. फंड का फंडा क्या है? फंड यू पुट इट अंडर लायबिलिटी. Any income related to that fund, you add it to that fund. Any expense related to that fund, you deduct it from the fund. Okay? Not a recurring one. Then we come to the adjustments, outstanding subscriptions. पहले तो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग देखो. लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना है? 8,800. सोच के बताना लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या होना चाहिए इसका. दो Minus from this. लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. What are we supposed to do? एक तो माइनस करना है फ्रॉम सब्सक्रिप्शन. अच्छा, और माइनस last year balance sheet asset. एंड लास्ट ईयर बैलेंस शीट. पहले माइनस करना है कि नहीं ये डिसाइड कर दो. माइनस करना है कि नहीं करना है. करना है. पक्का करना है. हाँ, लास्ट सब में तो नहीं किया था, ईयर वाइज दिया था तभी. अलग से दिया था ना. करंट ईयर का ही दिया था. एग्जैक्टली. जब ईयर वाइज होता है तभी हम माइनस नहीं करते हैं, क्योंकि ईयर वाइज है, मतलब करंट ईयर अलग है, लास्ट ईयर अलग है, इंक्लूडेड नहीं है, तो माइनस करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पर इंक्लूडेड है. इंक्लूडेड है इसका मतलब क्या? जो आपको मिल रहा है ना ऊपर रोकड़ा, देखो रिसीट साइड पे, हाउ मच हैव यू रिसीव्ड? 92,700. कैन यू गाइस सी दैट? 92,700 जो आपको रिसीव हुआ है ना, उसके अंदर ये 8800 पड़ा हुआ है. इट इज इंक्लूडेड. So that's why you are going to subtract it to filter out to get your current year's income. So 8,800 will be subtracted from subscription and last year's asset. Hope is that clear, all of you? Then current year outstanding 9,000. What will be the two effects of current year's outstanding subscription 9,000? Add to subscription and liability. Add to subscription and liability. हो गया कल्याण. पहुंच गए नाला सोपारा. Add to subscription and liability, right? Asset. Liability कैसे निकल रहा है मुंह से अभी तक? Outstanding subscription is an asset. मिलना बाकी है. So add to subscription and asset. Remember boards का पेपर आपको डाला हुआ एक स्टूडेंट का पास्ट ईयर का. उस लड़की का पेपर चेक करो ग्रुप में. हितिक्षा नाम है, हितिक्षा पलन. उसने 3 मार्क इसमें ही गवाया. 97 she had scored. 3 marks. Only mistake in subscription NPO.
Don't do this silly error. Be alert. Then subscription received in advance. Subscription received in advance on 1/4/2010. That is pre-received subscription of which year? Last year. Last year का pre-received है. Think what will be the two effects? Add. And liability. Add to subscription करना है कि नहीं करना है? करना है क्यों करना है? क्योंकि ईयर ये का इनकम अब पैसा आपको लास्ट ईयर मिल चुका है. इनकम बिलोंग्स टू दिस ईयर. मनी यू हैव रिसीव्ड इन द प्रीवियस ईयर. लास्ट ईयर के रिसीट साइड पड़ा होगा, लेकिन इनकम बिलोंग्स टू दिस ईयर. व्हाट अबाउट द सेकंड इफेक्ट? लास्ट ईयर Liability of Last year's liability. Last year's liability. All of you got that? Last year's liability जो आपको बनाना है तो बनाओ, नहीं बनाना है तो मत बनाओ. लास्ट ईयर बैलेंस शीट की हमें जरूरत नहीं है वैसे. Then current year pre-received 5,000. Think and tell me what will be the two effects of current year pre-received subscription of 5,000. Current year pre-received subscription of 5,000. सब्सक्रिप्शन माइनस और माइनस हो जाएगा. Less from subscription होगा and liability. लायबिलिटी Less करना है कि नहीं? Big question, $1 million question. Less करना है कि नहीं बताओ? हाँ करना है. हाँ. डेफिनेटली करना है. क्यों करना है? बिकॉज वो जो ऊपर सब्सक्रिप्शन दिया है वो भेलपुरी ऑल इंक्लूसिव है. एक ही सब्सक्रिप्शन है, ईयर वाइज ब्रेकअप नहीं है. ठीक है, तो उस 90 to 700 के अंदर पिछले साल का 8,800 भी पड़ा है और नेक्स्ट ईयर का 5,000 जो मिला है वो भी पड़ा हुआ है. समझ में आ रही है बात? तो आपको दोनों माइनस करने पड़ेंगे. लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग भी माइनस करना पड़ेगा और नेक्स्ट ईयर का जो अभी रिसीव्ड इन एडवांस है वो भी माइनस करना पड़ेगा. दोनों माइनस करना पड़ेगा. एंड जो प्री रिसीव्ड है उसका इफेक्ट कहाँ जाएगा? जो प्री रिसीव्ड है उसका इफेक्ट कहाँ जाएगा? वेयर यू विल पुट प्री रिसीव्ड का इफेक्ट? करंट ईयर प्री रिसीव्ड जो है 5,000. सेकंड इफेक्ट बोलो. करंट ईयर प्री रिसीव्ड 5,000. व्हाट विल बी द सेकंड इफेक्ट? हेलो. Liability. Liability of which year? Current year. So basically, how many adjustments on subscription, guys? How many dots will be there on subscriptions? 4. Four. 4 dots. 4 adjustments. 4 ही adjustment maximum possible है. क्या है? This year, outstanding of last year. Pre-received this year, pre-received last year. Hope all of you clear with that? इशिता सोलंकी, समझ में आ रहा है कुछ? पेपर में भर भर के मिस्टेक्स किया है. ये करना है ना? Yes. खाली फाउंडेशन करना है कि पूरा करना? पूरा. फिर ऐसा करोगी तो नहीं होगा. इतना मिस्टेक, आंख बंद करके पेपर लिखा है. नहीं चलेगा. You don't understand something, you ask. If you are weak in something, you practice. वो चीज करने का है. पेपर में जाके बैंड बच जाएगी. wasn't that difficult to do so many mistakes. Now next item we have is building. Building last year it was 11 lakhs. Current year it was 11 lakhs. Is there any change in this asset from beginning till end? Is there any sale of building? Is there any purchase of building? Is there any depreciation on building? फिक्स्ड एसेट दिखे तो दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए. 3 एडजस्टमेंट पॉसिबल है, सेल, परचेज एंड डेप्रिसिएशन. चेक कर लेने का कुछ नहीं है. 11 लाख किधर जाएंगे? व्हाट विल बी द इफेक्ट्स ऑफ दिस बिल्डिंग? Last year asset, current year asset. लास्ट ईयर एसेट से करंट ईयर एसेट. इट्स अ फिक्स्ड एसेट. इन्वेस्टमेंट देखो, लास्ट ईयर कितना था? 1,50,000. करंट ईयर भी है 1,50,000. Is there any change? Is there any sale? Is there any purchase? Is there any depreciation? Please check. कुछ है? कुछ नहीं. तो लास्ट ईयर भी 1,50,000, करंट ईयर भी 1,50,000. करेक्ट? करंट ईयर भी 1,50,000, लास्ट ईयर भी 1,50,000. कैपिटल फंड, लास्ट ईयर का क्लोजिंग बिकम्स दिस ईयर का ओपनिंग कैपिटल. ओके, वी हैव बीन गिवन दैट फिगर. सो इवन इफ यू डोंट प्रिपेयर द ओपनिंग बैलेंस शीट, इट इज एब्सोल्युटली फाइन. बिल्डिंग फंड कहाँ जाएगा? 4 लाख रुपया. किधर से टपका है वो 4 लाख रुपया? कहाँ से आया है? कम ऑन. लास्ट ईयर का लायबिलिटी से कहाँ टपकेगा ये ओपनिंग बन के? करंट ईयर का लायबिलिटी. ओके, लॉन्ग टर्म. ओके, बिल्डिंग का पैसा पड़ा हुआ है बिल्डिंग फंड में, लॉन्ग टर्म फंड है वो, कैपिटल फंड जैसा.
कैपिटल फंड और बिल्डिंग फंड में क्या फर्क है, ये बता सकते हो? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल फंड एंड बिल्डिंग फंड? मतलब सर बिल्डिंग फंड सिर्फ हम लोग बिल्डिंग के लिए यूज कर सकते हैं। व्हाट अबाउट कैपिटल फंड? बिजनेस के लिए ओवर Any activity of organization, any other asset you want to buy, any investments you want to buy. Okay, तो कैपिटल फंड का पर्पस इज जनरल। कैपिटल फंड का दूसरा नाम है जनरल फंड। कैपिटल फंड का दूसरा नाम होता है जनरल फंड। तो कभी सम में कैपिटल फंड दे सकते हैं, कभी जनरल फंड भी दे सकते हैं, बात एक ही है। उसका यूज आप कहीं पर भी कर सकते हो, ठीक है। बिल्डिंग फंड का यूज आप सिर्फ बिल्डिंग बनाने के लिए कर सकते हो। टूर्नामेंट फंड का यूज आप सिर्फ टूर्नामेंट कंडक्ट करने के लिए कर सकते हो। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंड का पैसा आप सिर्फ प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कर सकते हो। इनको एक नाम दिया गया है। जिन फंड का पर्पस स्पेसिफिक होता है उनको एक नाम दिया गया, उनको क्या कहा जाता है, याद है किसी को? शुरू में बताया था, नॉट मोक्षित। एनीवन एल्स? Sir, can you repeat the question? जो फंड का पर्पस स्पेसिफिक होता है, जैसे बिल्डिंग फंड, टूर्नामेंट फंड, Endowment fund. एंडाउमेंट फंड, इनको कहा जाता है एंडाउमेंट फंड। इनको कहा जाता है एंडाउमेंट। ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है। अगर मरने के बाद जो डोनेशन देके जाता है उसको क्या कहते हैं? आफ्टर डेथ, एज पर द विल ऑफ द पर्सन, जो डोनेशन ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है उसको क्या कहते हैं? कुछ Anyone? L पर से है ना सर? एल पर से है ये। लेगेसी। लेगेसी, लेगेसी कहते हैं। मरने के बाद एज पर द विल ऑफ द पर्सन एनीथिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड लेगेसी। फंड्स होते हैं जो इकट्ठा करते हैं, जिसका पर्पस स्पेसिफिक होता है, उसको कहते हैं एंडाउमेंट फंड। उसको कहते हैं एंडाउमेंट फंड। ओके, फुल लाइफ का पैसा एक साथ दे दिया टू बिकम अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फुल लाइफ का पैसा एक साथ दे दिया, उसको क्या कहते हैं? Life membership fees. Life membership fees. Life membership fees. Okay, so all these things can come in objectives, remember. Okay, there will be soon a test of objectives also, entirely on objectives. Okay, entirely of objectives, all chapter, all objectives, all objectives. Okay, give the dots quickly. How many dots on subscription? चलो आप बताओ अभी फटाफट। How many dots on subscription? 4 dots. 4 dots on subscription. How many dots on building fund? How many dots on building fund? How many dots on building fund? One. 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 Just donation you need to add. That's it. Okay. Just donation you need to add. Let's begin. साथ में करते जाओ। फर्नीचर से शुरू करो। फर्नीचर लास्ट ईयर था कुछ, चेक कर लेने का। हमेशा कोई भी एसेट दिखे लास्ट ईयर से करंट ईयर में लाओ, फिर एसपीडी। लास्ट ईयर तो कुछ नहीं था, करंट ईयर खरीदा है फर्नीचर। टेल मी, इज देयर एनी सेल परचेज डेप्रिसिएशन? यही परचेज है, डेप्रिसिएशन कुछ नहीं है, तो सीधा आउटर कॉलम 22,000। 22,000 इन द आउटर कॉलम। फर्नीचर करंट ईयर एसेट 31st March 11। Then we have medicines. So 2 medicines. Do you have any dot on medicines? Please check. Any dot on medicines? No dots, outer column. Honorarium to doctors. Honorarium to doctors. Again, no dot. ये नो डॉट का अर्थ क्या हो रहा है? आपने जितना पे किया है उतना ही अक्रूड है, उतना ही इनकर्ड है। कुछ ज्यादा पे नहीं किया, कुछ कम पे नहीं किया। समझ में आ रही है बात? ओके, तो कुछ ज्यादा पे नहीं किया, कुछ कम पे नहीं किया, जितना इनकर्ड था उतना फिटुस। नो लास्ट ईयर का लफड़ा, नो नेक्स्ट ईयर का लफड़ा। सैलरी टू स्टाफ पे भी कोई डॉट नहीं है, बहुत ही। सर, जो हाँ, एंट्रेंस फीस आपने बोला वो कैपिटल फंड में ऐड करने का क्यों? वन टाइम फीस है ना, कुछ नहीं दिया तो वी अज्यूम दैट एंट्रेंस फीस इज पेड ओनली ऑन द एंट्री ऑफ द मेंबर, और एंट्री ऑफ द मेंबर इज अ रेयर थिंग, not a regular thing. If nothing is specified, entrance fees need to be capital. तो हम अच्छा लायबिलिटी में नहीं लिख सकते? लायबिलिटी में अलग से नहीं लिखना है, क्योंकि उसका पर्पस स्पेसिफिक नहीं है। वो पैसा आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। फंड नहीं है ना, वो कोई स्पेसिफाइड फंड नहीं है, एंडाउमेंट फंड नहीं है। एंट्रेंस लाइफ मेंबरशिप में भी कुछ नहीं दिया होता तो भी कैपिटलाइज। लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज, लेगेसी। खाली 3 चीजें इनकम में जाती हैं, कुछ नहीं दिया तो ओनली 3 थिंग्स विल गो इन इनकम। विच 3 थिंग? सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, ग्रांट।
गवर्नमेंट ग्रांट, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, ग्रांट, इसको छोड़ के जो दिया है सब कैपिटलाइज। एंट्रेंस फीस के बारे में कुछ नहीं दिया, कैपिटलाइज। लाइफ मेंबरशिप फीस के बारे में कुछ नहीं दिया, कैपिटलाइज। लेगेसी के बारे में कुछ नहीं दिया, कैपिटलाइज। ऐसा कुछ स्पेसिफाई करके नहीं दिया इन आइटम्स के बारे में, कैपिटलाइज। ऑलराइट, कैपिटलाइज मतलब यू अज्यूम दैट इट इज वन टाइम इनकम, वन टाइम रिसीव। तो पेपर में जनरली ये इश्यू आज तक आया नहीं है, दे ऑलवेज क्लियर कट स्पेसिफाई व्हाट यू नीड टू कैपिटलाइज, हाउ मच यू नीड टू कैपिटलाइज, इनकम में डालना है कि कैपिटलाइज करना है, पेपर में तो क्लियर कट इंस्ट्रक्शन होता है। दिस इज मेनली फॉर सीए फाउंडेशन में भी ये आता है, तो ये जनरल assumption is followed there also, remember. Salary to staff, that is expense. Sundry expense is also expense. No dot. Sundry expense is also expenses. That is 3,500. Then surgical equipment. Surgical equipment is asset. Tell me, were there any surgical equipment in the last year? No. No. अगर होते तो you would have started from last year, bought it to this year, and then you would have done 3 adjustment on that surgical equipment, sale, purchase, depre. Unfortunately, there are no adjustment, so you put surgical equipment in the outer column directly as 51,500. यही साल खरीदा है, डाल दो outer column. Fixed deposit coming from last year or brought this year. When have you bought this fixed deposit? Last year. No, this year. This year. अगर last year से आया हुआ होता तो कहाँ दिखता? नीचे के Last year balance. हाँ, बैलेंस शीट में नीचे इन्फॉर्मेशन में, क्वेश्चन में पता चल जाता आपको, राइट? Last year balance sheet. हाँ, लास्ट ईयर बैलेंस शीट, राइट। और क्वेश्चन में दिखता नीचे डेटा में, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, तो सिंपली फिक्स्ड डिपॉजिट इज एसेट 60,000 ब्रॉड। सर हम लोग इसको इन्वेस्टमेंट में ऐड कर सकते हैं? यू कैन ऐड इट टू इन्वेस्टमेंट, बट एज आई टोल्ड यू, जब आपको इन्वेस्टमेंट एफडी अलग दिया है, इन्वेस्टमेंट और बॉन्ड्स अलग दिया है, तो अलग भी दिखा सकते, यू कैन शो इट। सेम इन्वेस्टमेंट है, जैसे एफडी, गवर्नमेंट बॉन्ड, सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट, तो यू ऐड अलग, यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो इन्वेस्टमेंट इन एफडी करके, इट्स नॉट रॉन्ग, अलग भी दिखा सकते, यू कैन शो इट सेपरेटली, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ओके। बट जब सेम इन्वेस्टमेंट हो तभी डेफिनेटली यू ऐड, वो सेम एसेट हो गया। बैलेंस कैरिड डाउन इज क्लोजिंग बैलेंस, कैश एंड बैंक या कैश/बैंक यू कैन राइट 4,200, एंड ऑफ द ईयर इतना रोकड़ा बच गया आपके पास, ओके। Opening cash balance, where you will write opening cash balance? In the last year's balance sheet asset. अभी मैं बना रहा हूँ last year balance sheet asset, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 10,500, ठीक है। Then subscription कहाँ जाएगा देखना एकदम ध्यान से, how many dots on subscriptions? How many dots on subscriptions? 4. तो सब्सक्रिप्शन इनर कॉलम में लिखना है आपको, क्योंकि 4 एडजस्टमेंट है। यस, 4 डॉट्स। सब्सक्रिप्शन इज 90 to 700, दिस इज रोकड़ा रिसीव, ओके ना, कैश मिला है, ये इनकम नहीं है आपकी ये साल, तो ये अभी इसको इनकम में कन्वर्ट करेंगे हम। क्या क्या एडजस्टमेंट है ध्यान से देखना। पहले तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग इसके अंदर पड़ा हुआ है, उसको क्या करना है, हटाना है, तो माइनस लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दैट इज 2010 का 8,200 हटाओ 8,800 था, सॉरी 8,800 इसमें से हटाओ। फिर आता है करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, वो ऐड कर दो आप, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये ऐड कर दो 2011 वाला, ये करंट ईयर का अभी भी मिलना बाकी है, इनकम बिलोंग्स टू दिस ईयर, सो यू ऐड। Pre-received of last year, pre-received मतलब subscription received in advance, current year का नहीं है, last year का है, 2010 का है, and that is how much, 7,500। इसका मीनिंग बहुत सिंपल है, ये लास्ट ईयर पैसा मिल गया था, इनकम बिलोंग्स टू दिस ईयर, इसलिए आपने लास्ट ईयर माइनस किया होगा, ये साल में ऐड कर दो, ये साल के इनकम को बिलोंग करता है। एंड करंट ईयर प्री रिसीव्ड जो 5,000 है, वो भी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, करंट ईयर का इतना प्री रिसीव्ड है 5,000। ये 5,000 का मीनिंग क्या है, ये नेक्स्ट ईयर का अभी मिल गया,
7500 क्या था, ये साल का पैसा लास्ट ईयर मिला था. 5000 क्या नेक्स्ट ईयर का पैसा ये साल मिला है. तो आप यहाँ से माइनस कर दो रोकड़े में से, और ये 5000 नेक्स्ट ईयर के इनकम में ऐड हो जाएगा. जैसे 7500 करंट ईयर में ऐड किया, वैसे 5000 नेक्स्ट ईयर के इनकम में ऐड कर देंगे हम. ये इनकम नेक्स्ट ईयर की है. बस यही तो है 4 एडजस्टमेंट. अभी करो इसका आउटर कॉलम अमाउंट 27, 47, 95, 95,400. Is it 95,400? Please check. हाँ सर. Yes. Yes. 95,400. Very good. 95,400 is your income. Are all of you comfortable with this part? Anyone who is not getting still the subscription part, please ask. Please, please, please. Bolo, bolo, bolo. Anyone? बताओ बताओ. Subscription. इशिता जी को समझ रहा है? Yes. जैनम को समझ रहा है, मनन को समझ रहा है, मिलोनी को समझ रहा है. मिलोनी का लेवल डाउन हो रहा है अभी. मिलोनी लास्ट ईयर एकदम टॉप पे, फुल मार्क 29, फुल मार्क 29, अभी एकदम सीधा 24, 23. व्हाट हैपेंड मिलोनी? हाँ सर. हाँ क्या? सर इस पेपर में फाइनल अकाउंट लास्ट में छोड़ दिया था, इसलिए ये mistakes हो गई. पेपर नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द टेस्ट इन जनरल. कितना आया था एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ कंबाइंड टेस्ट में? 27. 27 था. इससे पहले वाले टेस्ट में आई थिंक 24, 25, 26 बीच बीच में आया है कहीं तो. बट नॉट, तुम्हारा पेपर आता है तो मेरे को लगता है 29, 30 वाला है ये पेपर. ये सीधा 27 आ जाता है, 24 आ जाता है. शौक लगता है. ऐसा नहीं होना चाहिए. Can score full, go for full mark. Vanshi Kamdar, how was the paper? It was okay. Was okay. Why? Difficult. I felt difficult. Found it difficult. But what is Confusing. yes. Did not practice. I did a little bit. Not Little bit. Full fledged था. 6 chapters था. Okay. Marathon के लिए you need to work like marathon, right? एक दिन में 21 किलोमीटर सीधा बाय 42 किलोमीटर नहीं होने वाला है. It was a big paper. Practice, practice. रिया खंदूर. रिया. Yes, sir. What? लास्ट ईयर का कंटिन्यू हो रहा है. मेरे को प्रोग्रेस चाहिए. कम ऑन. इधर ना किधर सिली मिस्टेक. हाँ, प्रेजेंटेशन बहुत इम्प्रूव हो गया. वेरी हैप्पी विद दैट. बट सिली मिस्टेक. व्हाई सिली मिस्टेक? वो फाइनल अकाउंट्स में हुआ था. नहीं. ढाई से होता है कि समझ में नहीं आया, ऐसा हो गया इसकी वजह से. पेपर यू आर एबल टू कंप्लीट ऑन टाइम? नहीं, थोड़ा लास्ट में छूट गया था. प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस. राइट एंड सॉल्व. और जो तुम एकदम सजा धजा के एकदम प्रेजेंटेशन करती हो ना स्टार्टिंग से, डेट पर्टिकुलर एवरीथिंग परफेक्ट, डेबिट क्रेडिट, वो लास्ट के लिए रखो. Keep that for the end. Okay, it is good, no doubt it is good, but first concentrate on the paper. Finish it off start to end. It should be 100% correct. Okay, एक भी पेपर में मिस्टेक होगा ना तो वो ऊपर का प्रेजेंटेशन नहीं करेगा. वो एकदम एंड के लिए डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट क्रेडिट, इन द बुक्स ऑफ, वो सब एंड के लिए रखो. पहले पूरा पेपर परफेक्ट रीचेक करो, परफेक्ट कैलकुलेशंस रीचेक अगेन, and then go for that extra present. That will save your time. 5 to 10 minutes you can save over. All of you, not only Riya, all of you, remember this. Presentation आपका last part है. Okay? Presentation will matter always at the end. Once you have completed everything, it should be perfect. Full mark guarantee. फिर आप उसको सजाने presentation के लिए perfect करो. Okay? Mistakes होगा तो फिर उसका मतलब ही नहीं. That is a simple thing. Then, coming to the सब्सक्रिप्शन पार्ट हो गया अपना. एंट्रेंस फीस के बारे में कुछ नहीं दिया है. वेयर आर वी सपोज्ड टू पुट? एंट्रेंस फीस के बारे में कुछ नहीं दिया है तो क्या करना है? बोलो. add to capital. Add to capital fund. One time income.
Entrance fees you can add to capital fund. This is 1100. You can write a note, supporting note for that. कुछ information नहीं दिया, मैं आपको note दिखाऊंगा यहाँ पे. Entrance fees 1100. Life membership fees needs to be capitalized. ये भी capitalize करना है. Add to capital fund life membership fees. That is 15,000. Sale of old newspapers. Sale of old newspapers, that is income by sale of old newspaper. That is income 600. Say donations for building fund. Check whether you had any building. जैसे देखो asset का आप करते हो ना, asset. Fixed asset दिखता है तो what do you do last year, then last year से current year, then sale purchase depreciation. वैसे ही बिल्डिंग फंड कोई लाइबिलिटी दिखी लास्ट ईयर वाली तो लास्ट ईयर की लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी पहले लास्ट ईयर लाइबिलिटी में लिख दो बिल्डिंग फंड देयर वाज अ बिल्डिंग फंड इन द लास्ट ईयर शो इट इन द लास्ट ईयर लाइबिलिटी देन ब्रिंग इट टू दिस ईयर बिल्डिंग फंड लास्ट ईयर से करंट ईयर में लेके आओ बिल्डिंग फंड ओके कितना था 4 लाख रुपया एंड इसमें डोनेशंस ऐड कर दो ऐड डोनेशंस for building fund. Okay, this is how much 1,20,000. So total it is 5,20,000. ये पैसा आपका लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए आया हुआ है बिल्डिंग बनाने के लिए. ये रिकरिंग नेचर का कतई नहीं है तो ये एक्सपेंडिचर में नहीं जाने वाला है. ठीक है, तो इनकम एक्सपेंडिचर में बिल्कुल नहीं जाएगा. ये हमेशा लायबिलिटी में दिखेगा कोई भी फंड. इनफैक्ट बिल्डिंग फंड डोनेशन हो गया. उसके बाद एडजस्टमेंट्स पे आ जाओ. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. देखो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग एक इफेक्ट हमने क्या किया हुआ है. वन इफेक्ट वी हैव ऑलरेडी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सब्सक्रिप्शन. सेकंड इफेक्ट इज लास्ट ईयर एसेट. लास्ट ईयर एसेट में लिख दो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. कितना था लास्ट ईयर का 8,800. दूसरा इफेक्ट दे दिया मैं लास्ट ईयर का बैलेंस शीट बना रहा हूँ इसके लिए मैंने दूसरी इफेक्ट. ठीक है, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. क्या करना है आपको. करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड टू सब्सक्रिप्शन एंड एसेट्स ऑफ करंट ईयर. एसेट्स ऑफ करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है 9,000. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस. लास्ट ईयर का रिसीव्ड इन एडवांस एक इफेक्ट ऐड हो चुका है ऊपर. दूसरा इफेक्ट लास्ट ईयर की लायबिलिटी. Subscription received in advance. Subscription received in advance 7,500. And current year pre-received. एक इफेक्ट ऊपर दिया हुआ है लेस करके. दूसरा इफेक्ट current year liability. Subscription received in advance. That is 5,000. सब्सक्रिप्शन के चारों इफेक्ट दे दिए. चारों एडजस्टमेंट के दूसरे इफेक्ट. देन बिल्डिंग. लास्ट ईयर भी 11 लाख, करंट ईयर भी 11 लाख. तो लास्ट ईयर एसेट में जाओ लिख दो बिल्डिंग 11 लाख. वही बिल्डिंग आपकी जाएगी करंट ईयर एसेट में. वही बिल्डिंग आपकी जाएगी करंट ईयर एसेट में 11 लाख. बिल्डिंग 11 लाख. ठीक है, लास्ट ईयर एसेट से लेके आओ करंट ईयर एसेट. नो सेल, नो परचेज, नो डेप्री, एज इट इज. इन्वेस्टमेंट भी लास्ट ईयर से टपक रहा है. कैसे पता चल रहा है मुझे ये लास्ट ईयर से आ रहे हैं. हाउ एम आई कंक्लूडिंग दैट दीज आर कमिंग फ्रॉम लास्ट ईयर. नीचे दिया है. नीचे देखो डेट दिया हुआ है 1410. 1410 मतलब बिगिनिंग डेट. वहां से टपक रहा है. करंट ईयर में लिया होता तो रिसीट पेमेंट में दिखता. ये 1410 का इन्वेस्टमेंट था. लास्ट ईयर कितने का था 1,50,000. Bring it to this year investment as 1,50,000. No sale, no purchase, no depreciation. As it is वैसे का वैसे. कैपिटल फंड लास्ट ईयर का क्लोजिंग है तो लास्ट ईयर के क्लोजिंग कैपिटल क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख रहा हूं मैं 861,200. ऑटोमेटिकली ये बैलेंसिंग फिगर मिलना चाहिए आपको. ये बन जाएगा करंट ईयर का ओपनिंग 861,200.
एंड बिल्डिंग फंड देख लो वापस, हमने लिखा हुआ है ऑलरेडी, लास्ट ईयर का लाइबिलिटी से आया ये करंट ईयर का लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म थी, नॉन सर रिकरिंग। 861 800 है। हाँ 800। 61 800 861 800। ठीक है, बस हो गया, अभी सम खत्म। आपका लास्ट ईयर का बैलेंस शीट देख लो। सिंस यू हैव ऑलरेडी रिटर्न द कैपिटल फंड, इट विल सेल्फ टैली। आपका लास्ट ईयर बैलेंस शीट सेल्फ टैली होना चाहिए। देखो चेक कर लो, 1261 1269 1269 1269 300 पे टैली होना चाहिए। एक बार वेरीफाई कर लो जरा कोई कैलकुलेट करके। 1269 300 इज इट टैलिंग? प्लीज चेक। यस सर। ओके, ये टैली होगा ही क्योंकि आपने कैपिटल फंड लिख दिया है ना। यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगा ये, यहाँ का क्लोजिंग बिकम्स इधर का ओपनिंग। अभी सरप्लस डेफिसिट के लिए बताओ पहले टोटल क्या है? 1,02,200। डेफिसिट है डेफिसिट ऑफ 6,200. 6,200 बाय डेफिसिट, मतलब क्या? एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। ये 6200 आपको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम योर कैपिटल फंड। आउटर कॉलम 8,71,700. टैलीज ऑन 13,36,700. 13,69,700 96 96. 700. 13,96,700। Write down a small note, since no info is given about entrance fees, we assume it is capitalized. ये इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये इनकम में भी डाल सकते हैं। एंट्रेंस फीस कभी कभी इनकम में भी डालते थे, कोई सम में कैपिटल फंड में भी डालते थे। इनफैक्ट लास्ट ईयर तक बोर्ड का टेक्स्ट बुक में भी दे यूज्ड टू पुट इट अंडर इनकम। दिस ईयर दे हैव चेंज। वो रॉन्ग था एक्चुअली। ये फाउंडेशन आगे जाके आपको पता थोड़ा स्क्रॉल चलेगा। करो ना। एंट्रेंस फीस इज ऑलवेज कैपिटलाइज, ऑलवेज कैपिटलाइज। या सर तो फिर वो आपने बोला कि ग्रांट सब्सक्रिप्शन किसमें जाता है फिर अगर उसका कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया होगा? ग्रांट, डोनेशन और सब्सक्रिप्शन इनकम में हर बार। अच्छा वो सर, income। जब भी कैपिटल फंड दिया रहता है लास्ट का बैलेंस शीट बना है तो कैपिटल फंड रिकॉर्ड करने का कि दिखा मतलब फाइंड करने का? एक ही आंसर मिलेगा मेरे भाई। वो तो पता है सर, बट वो पता है अबे कि अरे तू लिखेगा तो टैली होएगा और बैलेंसिंग फिगर करेगा तो टोटल मिलके ये बैलेंसिंग मिलेगा। एक ही बात। यस मिलन भाई। जूम जूम बैलेंस शीट। नेक्स्ट सम का ड्रॉ कर लो। सम नंबर सम नंबर 13। 13 हमने किया था ना कल, सॉरी नॉट 13। सर इनकम एक्सपेंडिचर नेक्स्ट सम इज सम नंबर 14। 14th sum, 14th problem. Please draw for 14th sum. सर मनन को अंदर लेना। दिया 14th sum. Please draw. हो गया ये 14th sum?
ड्रॉ करो फटाफट. In the books of Madras Junior Club. (31st March 07). Receipt and payment is for 31st March 07. So current year is 31st March 07. करंट ईयर का बैलेंस शीट भी 31st March 07. देख के बताओ, क्वेश्चन देख के बताओ, आर वी सपोज टू मेक ओपनिंग बैलेंस शीट? यस और नो? Yes. Check all of you. Look at the question and tell me, are we supposed to make any opening balance sheet or is it okay if we don't? नो नहीं, नहीं बनाने का. बैलेंस शीट नहीं बोला है ना, तो क्यों बनाना? बैलेंस शीट नहीं बोला है, स्टिल यू मेक इट. व्हाई? कैपिटल फंड. कैपिटल फंड. ओके, कैपिटल फंड. कैपिटल But फंड sir, कैलकुलेट balance sheet- करने के लिए डू मेक इट. सॉरी, सर तो क्वेश्चन में ही balance सिर्फ sheet- इनकम एंड एक्सपेंडिचर हाँ, अकाउंट इनकम बोला है. एक्सपेंडिचर ही पूछा है, बैलेंस शीट नहीं बनाना. एसेट्स लायबिलिटी का डेटा ही नहीं दिया यार. एसेट लायबिलिटी का डेटा है, पर क्वेश्चन में सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर ही बनाना है. वो आपका होमवर्क सम था वैसे. वो बराबर है, उस सब में बैलेंस शीट का डेटा ही नहीं था होमवर्क सब. ये सब में तो दिया है. बनाओ बनाओ, ये सब में बनाओ लास्ट ईयर बैलेंस शीट. आई टेल यू द रीजन आल्सो व्हाई. भले इनकम एंड एक्सपेंडिचर पूछा है, वी विल मेक एवरीथिंग. लास्ट ईयर बैलेंस शीट, करंट ईयर बैलेंस शीट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर सब बनाएंगे. ठीक है, यूजुअली आपको क्वेश्चन में जो पूछा है वही बनाना है फेयर में. ऑब्वियसली करेक्ट. ओके, लास्ट ईयर का बैलेंस शीट नहीं दिया है तो इट विल बी फॉर्मिंग अ वर्किंग नोट. अगर आपका कैपिटल फंड मिसिंग है तो उसको ढूंढने के लिए आपको बनाना पड़ेगा. ठीक है, बट अदरवाइज जो क्वेश्चन में दिया है फेयर में, वो फेयर में दिखना चाहिए. टेस्ट में पूछा गया ऐसा सम तो नहीं बनाने का है ना. टेस्ट में पूछा गया है तो खाली जो क्वेश्चन में दिया है वो फेयर में दिखना चाहिए. मतलब अभी यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर है तो वही बनाने का फेयर. हाँ, जनरली लास्ट ईयर का बैलेंस शीट करंट ईयर बैलेंस शीट रहता है तो वो फेयर में. लास्ट ईयर का बैलेंस शीट एज अ वर्किंग नोट, अगर कैपिटल फंड मिसिंग है. कैपिटल फंड मिसिंग है तो बनाने का लास्ट ईयर का बैलेंस एज अ वर्किंग. डोंट स्किप इट. कैपिटल फंड दिया है देन डोंट मेक लास्ट ईयर बैलेंस. जैसे हम लोग एडमिशन रिटायरमेंट में करते हैं ना, कैश एंड गुडविल अकाउंट ऑलवेज एज अ वर्किंग नोट. So do show opening balance sheet as a working note if last year's capital fund is missing. Do make. And fair में जो क्वेश्चन में पूछा, ऑब्वियसली जो फेयर में जो दिया है वो क्वेश्चन में दिया होगा, वही फेयर में करना. ये सब में खाली इनकम एंड एक्सपेंडिचर पूछा है, बट आई विल एडवाइज यू मेक एवरीथिंग, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर. एक आध चीज सीखने भी मिलेगा, एक कंसेप्ट भी है, हमने लास्ट सब में एक बार किया भी है. So make everything. You can name it as working note. बैलेंस शीट को आप वर्किंग नोट में दिखा सकते हो. फेयर में खाली इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना. नाउ पेमेंट साइड सैलरीज, वहां से मार्क करो. वेयर विल पुट दिस सैलरीज? रेंट एक्सपेंस, electricity expense, postage and stationery expense, insurance premium expense, general expense, part payment on account of furniture. Part payment on account of furniture. What do you mean by part payment on account of furniture? Some part is paid and half is on credit. हाँ, some part is paid. फिलहाल ये पार्ट पेमेंट जाएगा किधर? ये पार्ट पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ फर्नीचर जाएगा किधर? Expense. एक्सपेंस. एसेट. Add to furniture asset. एड टू फर्नीचर. फर्नीचर खरीदा है ना, उसका पैसा दिया है, तो वो कैसा एक्सपेंस हुआ? इज फर्नीचर योर एक्सपेंस? नो, एसेट. तो पार्ट पेमेंट का मतलब वो बाय फर्नीचर ही है, फर्नीचर टू कैश का एंट्री है.
उतना पैसा का फर्नीचर आपने खरीद लिया है, कितना पैसा का, 4500 का। 4500 is your asset. 4500 is your asset. Balance at bank. Balance at bank will go to current year's asset. Opening balance at bank will go to last year's asset. Entrance fees के बारे में पढ़ो, कुछ information दिया है। Not to Not be be capitalized. capitalized. Not to be capitalized. मतलब as income. You have to show it as income. Clear cut instruction है। Subscription 3 दिया हुआ है, 6, 7, 8. Which is the current year out of the 3? 7. 6, 7. 6, 7, that is 7. तो 6 का क्या मतलब हुआ? 6 का 250 यहाँ पे दिख रहा है, उसका मतलब क्या हुआ? लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग अभी रिसीव हुआ। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग अभी रिसीव किया, तो ये कहाँ जाना चाहिए आइडियली? Last year लास्ट ईयर asset. Last year. लास्ट ईयर एसेट, लास्ट ईयर एसेट। 07 का कहाँ जाएगा? This year income. दिस ईयर। 08 का कहाँ जाएगा? वो अभी मिलेगा। दिस ईयर This year लायबिलिटी। दिस liability. ईयर लायबिलिटी। विल यू सब्ट्रैक्ट दिस 08 का सब्सक्रिप्शन? No. नो Will you No. subtract that 250 from the No. subscription? No. नो Why are we not subtracting? Because year wise. Year wise दिया है, मिलावट नहीं है, टेंशन नहीं, माइनस करने की जरूरत। अच्छा, 3650 जो आउटर कॉलम में दिया है, उसका कुछ करना है? नहीं. नहीं. इग्नोर मार। देन दिया है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। टू सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 7500, थोड़ा नीचे हो गया वो। टू सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 7500। व्हाट इज दैट 7500? सेल वैल्यू और बुक वैल्यू? Sale value. सेल वैल्यू और बुक वैल्यू 7500। Sale value. Sale value, are we supposed to record that anywhere? नो No, it is No. recorded in the receipt payment ना। कैश मिला है, सर्कल करो उसको। 7500 कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं करना। इनफैक्ट सर्च फॉर द बुक वैल्यू, सर्च फॉर द बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। 5,000. 5000। सर्च करो, सब लोग सर्च करो, कम ऑन। सर्च फॉर द सेल, सॉरी, बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, कहीं पर मिलेगा आपको। और 7500 लोन का है। 7500 लोन का नहीं है, वो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 7500 है, लोन का अमाउंट 2000 है, नीचे हो गया है वो। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 7500, सर्कल इट, सर्च फॉर बुक वैल्यू। बोलो। 5000. Where do you see it? Point number 2. Cost of investment sold was 5000. The surplus is to be treated as income. So मुझे बताओ, इन्वेस्टमेंट में से कितना माइनस करोगे सेल के लिए? How much will you subtract from investment? 5,000. Book value. Book value 5000. And 2500 क्या हो गया? 5 Income. 7500 Income. 2500 is income. That will be profit on sale of investment. All of you got that? One more $1 million question. Look and tell me, have you bought any investment in this year? No. But you have sold one. अब आपको Last चीज year. याद होगी, कोई एसेट अगर बेचा है तो वो कहाँ से टपकना जरूरी है? Last year. लास्ट ईयर से आना Last जरूरी year. है, लास्ट ईयर से आना जरूरी है, ठीक है? अभी इंफॉर्मेशन में तो कुछ दिया नहीं है कि इन्वेस्टमेंट था लास्ट ईयर, कुछ ऐसा कुछ दिया नहीं है। Assume करना है। स्टिल अज्यूम करना है। क्या अज्यूम करना है? 5000। Investment था 5,000. कितने का Investment. 5,000. की 7500? 5,000. 5,000. बुक वैल्यू का अज्यूम करना है कि लास्ट ईयर 5000 का इन्वेस्टमेंट था, वो ब्रिंग इट टू करंट ईयर, देन यू सेल इट। ओके, याद आया वो फर्नीचर वाला एग्जांपल हमने किया भी था, 200 रुपीज लास्ट ईयर में सेल, ये साल सेल किया था, लास्ट ईयर कुछ दिया नहीं था, 120 था या 200, 120 था शायद। लास्ट ईयर से करंट ईयर में लाया, फिर सब्ट्रैक्ट, फिर परचेज, फिर डेप्री। सर तो यहाँ- मतलब हाँ, सर तो ये साल में पहले 5000 दिखेगा, लास्ट ईयर के एसेट में 5000 और ये साल के एसेट में भी 5000 ना, हाँ, फिर सेल 5 - 5 0 हो जाएगा, और बाद में जो 2500 वो इनकम में जाएगा। वो इनकम, वो प्रॉफिट। गॉट इट ऑल ऑफ यू? तो कोई भी सेल हो रहा है ना एसेट का, बहुत ही इंपॉर्टेंट अजम्पशन है एनपीओ का, whenever there is no date given regarding purchase or sale of asset, we assume it is happening on the first date of the year. तो ये सेल भी पहले ही दिन पे हो रहा है। ये पहले दिन पे सेल होने का मतलब क्या है? ये साल में तो खरीदा नहीं है, इस साल में खरीदा होता तो पेमेंट साइड दिख जाता, खरीदा हुआ है नहीं, तो लास्ट ईयर से टपक रहा है।
ये सेल हमेशा लास्ट ईयर से ही टपकेगा। लास्ट ईयर का एसेट हमने ये साल में बेचा। ओके, दैट इज अ जनरल assumption always। okay, nothing is given and always that sale happens from last year asset। so ये सेल हो गया। फिर लोन टेकन फ्रॉम कृष्णा स्वामी ऑन 11006 एट 10%। लोन टेकन कहाँ जाएगा आपका? लायबिलिटी लाइबिलिटी ऑफ दिस करंट ईयर। है। दिस ईयर, ये साल लिया हुआ लोन है। 10% हिडन एडजस्टमेंट भी है, हम लोग को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर आ जाओ बॉटम एडजस्टमेंट पे, नीचे एडजस्टमेंट देखो, उधर वो अलाइनमेंट शिफ्ट हो गया है 31 मार्च 06 31 मार्च 07। ओके, चाहिए तो ऊपर लिख लो 31 मार्च 06 31 मार्च 07, दोनों डेटा दिया हुआ है। रेंट ड्यू म्हणजे काय? रेंट ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग रेंट। अभी मेरे को बताओ लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग 180, क्या करोगे लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग 180? लास्ट ईयर लाइबिलिटी, यही साल रेंट में से माइनस। लास्ट ईयर लाइबिलिटी एंड ये साल रेंट में से माइनस। समझ में आ गया? लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या करना है? ऐड टू रेंट और ये साल लाइबिलिटी। लायबिलिटी ऐड टू रेंट एंड ये साल लाइबिलिटी। इलेक्ट्रिसिटी ड्यू है, वो इलेक्ट्रिसिटी ड्यू है, प्लीज मेंशन इलेक्ट्रिसिटी ड्यू 6 आउटस्टैंडिंग। लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या करेगा? सेम, लेस फ्रॉम लेस फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी और लास्ट लास्ट ईयर ईयर लायबिलिटी। लाइबिलिटी। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी 200, एड टू ऐड टू इलेक्ट्रिसिटी और करंट ईयर लाइबिलिटी। करंट ईयर लाइबिलिटी। सब्सक्रिप्शन ड्यू, ध्यान से पढ़ो, 250, वेरी इंपॉर्टेंट। 250 लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। सर वो रिसीट पेमेंट में दिया है ना। हाँ, रिसीट पेमेंट में देखो, अभी अभी देखा हमने। रिसीट साइड देखो, सब्सक्रिप्शन कितना दिया हुआ है? रिसीट साइड ईयर वाइज दिया है। 250 दिया हुआ है। यस सर, ऊपर वाला 250 और ये 250 अलग है कि सेम है? सेम है। सेम है। सेम है। सेम है। मुझे ये बताओ, इज देयर एनी सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर विच इज स्टिल इन अरियर्स? नो नो। नो। इज देयर एनी सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर विच इज स्टिल इन अरियर्स? नो। लास्ट ईयर का कोई भी सब्सक्रिप्शन स्टिल इन अरियर्स है ही नहीं। वंस अगेन ना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। 250 रुपीज देखो क्या दिया है 2006 में, मतलब लास्ट ईयर मिलना बाकी था, और ये साल के रिसीट साइड दिख रहा है 250, मतलब वही 250 मिल चुका है। तो कुछ भी स्टिल इन अरियर्स है? ऐसा कुछ है जो अभी भी मिलना बाकी है? नो नहीं। तो कोई एक्स्ट्रा इफेक्ट देना है वो 250 का आपको? नो। खाली वो जो रिसीट वाला पार्ट लिखा है ना हमने, लास्ट ईयर एसेट खत्म, वही रिपीट करके दिया हुआ है। अच्छा, अब मुझे सोच के बताओ, उधर नीचे एडजस्टमेंट में 250 के जगह 300 होता, 250 के जगह 300 होता लास्ट ईयर रिसीवेबल, तो क्या करते? 50 स्टिल इन 15 50 अरियर्स। स्टिल इन 50 अरियर। रुपया स्टिल इन अरियर्स हो जाता। वो कहाँ जाता? 50 रुपया करंट ईयर करंट एसेट। ईयर एसेट। करंट ईयर एसेट में चला जाता। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि लास्ट ईयर 300 मिलना बाकी था, उसमें से 250 मिला है, तो 50 रुपया स्टिल इन अरियर्स, करंट ईयर एसेट। ओके, यहाँ पर तो वो झंझट नहीं है, देयर इज नथिंग स्टिल इन अरियर्स। ऑल ऑफ यू गॉट दैट? धृति को समझ में आ रहा है? धृति? हाँ सर। देन इंश्योरेंस। अच्छा, करंट ईयर का भी आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन 400 रुपया, उसका क्या होगा इफेक्ट? ऐड टू सब्सक्रिप्शन एसेट। ऐड टू सब्सक्रिप्शन एंड एसेट। कौन से वाले सब्सक्रिप्शन में ऐड करना है वो 400? दिस ईयर। दिस ईयर 7 वाले का। ऐड टू सब्सक्रिप्शन एंड एसेट बिलोंग्स टू दिस ईयर, पैसा मिलना बाकी है। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस 50 रुपीज, विच 50 इज दैट? लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का year. प्रीपेड। व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू विद लास्ट ईयर्स प्रीपेड? ऐड टू Add to इंश्योरेंस। ऐड टू इंश्योरेंस एंड लास्ट ईयर लास्ट ईयर एसेट। last year asset. And what about 70 rupees? माइनस इंश्योरेंस Less एंड from दिस this ईयर year. एसेट। Less from insurance and this year asset. Okay, less from insurance and this year asset. करंट ईयर का प्रीपेड मतलब ज्यादा पे कर दिया, हटाओ। लास्ट ईयर का प्रीपेड मतलब लास्ट ईयर तुमने ये साल का पैसा दिया था, ये साल के एक्सपेंस में ऐड करो। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का तो दे दिया हमने एडजस्टमेंट, लेस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू एंड इनकम प्रॉफिट। थर्ड एडजस्टमेंट पढ़ो, सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पढ़ो। फर्नीचर वाज वैल्यूड एट 3000 31st March 06. What is 31st March 06? लास्ट ईयर। लास्ट डेट। मतलब ये फर्नीचर कहाँ से आ रहा है?
लास्ट ईयर लास्ट ईयर से आ रहा है, तो लास्ट ईयर एसेट करंट ईयर एसेट आएगा. देन ऑन 30th September 06, 30th September 06 falls in which year? दिस ईयर. This year 6-7 के अंदर आता है. ध्यान से पढ़ना, वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट गाइस. This year on 30th September 06 the club purchased additional new furniture at a cost of 5200. अब देखो गम्मत, ये साल नीचे बोल रहा है कि आपने 5200 का खरीदा है. अब अगर आपने कोई एसेट खरीदा है इस साल में, तो वो कहाँ दिखना चाहिए? इस साल का परचेज एसेट कहाँ दिखना चाहिए? पेमेंट साइड दिखना चाहिए. तो चेक करो पेमेंट में 4500. लेकिन नीचे तो बोल रहे हैं 5200 है, ऊपर कैसा पार्ट वैल्यू पे किया है ना. सर अक्रूड है. मतलब क्या? पेमेंट किया उतने क्रेडिट पे बाकी खरीदा का है. पेमेंट बाकी है, क्रेडिट है. 700 क्रेडिट. इसका मतलब है कि आपका जो फर्नीचर है वो 5200 का ही है. पैसा आपने 4500 दिया है, मतलब 700 रुपया क्रेडिट पे खरीदा है. अब इसका इफेक्ट कैसे दोगे? आप फर्नीचर ऐड कितना करोगे फर्नीचर में वो बताओ. 5200. 5200. फिर 700 रुपए का क्या? लायबिलिटी. Exactly. That 700 will be shown as current year's liability as creditor for furniture. This will be shown as creditor for furniture 700 rupees. See, once again I'll repeat. अब तक जितने हमने 12 एक सम किए हुए 10-12 सम्स, उसमें जो भी एसेट आप करंट ईयर में खरीदते थे वो कहाँ रिफ्लेक्ट होता था? पेमेंट साइड. राइट? तो पेमेंट साइड पे होना जरूरी है. करंट ईयर में बाय किया तो पेमेंट में दिखना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली उतना पैसा दिया है आपने. सिंपल एज दैट. बट ये सब में गम्मत हो गया. ये सब में नीचे दिया है कि फर्नीचर तो आया है 5200 का, लेकिन पैसा गया है 4500. इसका मीनिंग क्या है? 700 का फर्नीचर क्रेडिट पे खरीदा है. 11th स्टैंडर्ड एंट्री याद आ रहा है कुछ? फर्नीचर टू बैंक टू क्रेडिटर, पार्टली ऑन कैश पार्टली ऑन क्रेडिट. तो बैंक में कितना दिख रहा है आपको? बाय फर्नीचर 4500. बैंक में दिख रहा है आपको 4500 बाय फर्नीचर. तो क्रेडिटर में भी दिख रहा होगा ना बाय फर्नीचर 700. वेयर विल यू शो दिस क्रेडिटर्स ऑफ फर्नीचर? क्रेडिटर कहाँ दिखना चाहिए? लायबिलिटी ऑफ दिस ईयर और लास्ट ईयर? This year. Why this year? Why this year? Because you have bought it in. ये साल खरीदा. पिछले साल वाला 3000 तो पिछले साल खरीद लिया, वो तो कैश में हो चुका है, उसका लफड़ा नहीं है. करंट ईयर में जो खरीदा है, कैसा मालूम पड़ा 700 क्रेडिट है? कैसा मालूम पड़ा? पेमेंट साइड चेक करो. पेमेंट साइड चेक करो. अगर मुझे पेमेंट साइड 5200 दिख रहा होता, अगर पेमेंट साइड 5200 दिख रहा होता और नीचे एडजस्टमेंट में भी 5200 दिया है, तो कोई है क्या लफड़ा? कुछ क्रेडिट में होता? No. नहीं. नो. नीचे एडजस्टमेंट में भी बोल रहा है 5200 का खरीदा और पेमेंट में भी दिख रहा है 5200 पे किया, तो कुछ क्रेडिट पे हुआ ही नहीं, तो ये 700 का लफड़ा ही नहीं. लेकिन यहाँ पे गम्मत है. यहाँ पे आपको पेमेंट साइड दिख रहा है कि 4500 का खरीदा है और नीचे बोल रहा है कि नहीं भाई फर्नीचर तो 5200 का लाए हो. तो इसका मतलब क्या है? 700 रुपीज आपको पैसा देना बाकी है. दैट इज द क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर. समझ में आ रहा है? तो ये क्रेडिटर में इसमें हम लोग डायरेक्टली दिखा सकते हैं ना कि 4500 से बढ़ रहा है और 700 डायरेक्टली क्रेडिटर फॉर फर्नीचर. लेकिन फर्नीचर 4.5 से थोड़ी बढ़ रहा है. फर्नीचर बढ़ रहा है 5200 से. ये देखो फर्नीचर कितने से डेबिट हुआ है इधर? 5200. फर्नीचर एज एन एसेट विल इंक्रीज बाय 5200, नॉट 4500. गॉट इट? तो सर वो 4500 इसमें इंक्लूडेड ही है. इंक्लूडेड ही है. ये 5200 क्या है? इट इज 4500 प्लस 700. 4500 का एक इफेक्ट जो पेमेंट पार्ट वाला है ना, उसका एक इफेक्ट एड टू फर्नीचर. 700 का 2 इफेक्ट एड टू फर्नीचर एंड लायबिलिटी. फाइनल अकाउंट में भी करते थे, याद है? मशीन परचेज ऑन क्रेडिट. फाइनल अकाउंट में करते हो ना मशीन परचेज ऑन क्रेडिट. व्हाट आर द 2 इफेक्ट्स ऑफ मशीन परचेज ऑन क्रेडिट? Add to machine, add to creditor. एड टू मशीन एड टू क्रेडिटर. वही किया इधर 700 रुपए का. एड टू फर्नीचर एड टू क्रेडिटर.
4,500 तो रिकॉर्डेड था, उसको लिख दिया, वो पेमेंट हो चुका है, 1 इफेक्ट। 700 रुपए का 2 इफेक्ट किया। समझो इसी सम में नीचे 5200 की जगह 6000 दिया होता, 5200 की जगह 6000, ऊपर 4500 है पेमेंट में, नीचे 6000 है, फर्नीचर में कितना ऐड करते? 6,000। बोलो, सबको समझ में आ रहा है? 5200 के जगह नीचे 6000 होता तो फर्नीचर में कितना ऐड होता? हाँ 6,000। 6,000। फिर क्रेडिटर कितना दिखता लायबिलिटी में? 1,500। 1500 पेमेंट कितना किया है? 4,500, वो कैश परचेज हो गया, तो क्रेडिट पे कितना खरीदा होगा? 1,500। Did you get it? तो ऑल इन ऑल इस पूरे एडजस्टमेंट का अर्थ क्या हुआ? आपको देखना क्या है, सोचना क्या है? सुनो, आपको देखना ये है, अगर आपने करंट ईयर में कोई एसेट खरीदा है, सीधा पेमेंट साइड चाहिए। अगर करंट ईयर में एसेट खरीदा है तो पेमेंट में दिखना ही चाहिए। लेकिन अगर पेमेंट में वो एसेट कम दिख रहा है, इसका मतलब आपने कुछ पार्ट क्रेडिट में खरीदा हुआ, तो क्रेडिट में खरीदा तो वो क्रेडिटर्स दिख जाएगा आपको लायबिलिटी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो इधर फर्नीचर में विल यू ऐड 4500 और 5200? 5200। 5200 एसेट तो 5200 का है, 4500 खाली पैसा दिया है उसका। गॉट इट? अब तक के हर एक सम में और नॉर्मली भी हर एक सम में जितने का एसेट खरीदते हो उतना का पैसा दे देते हो, इसलिए पूरा पेमेंट में दिख जाता है। क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट आना बहुत रेयर स्टफ है, ये फाउंडेशन में आता है। यहाँ पे 12th में आपको क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट का एडजस्टमेंट नहीं डालता है, तो टेंशन लेने वाली बात है नहीं, प्रैक्टिस के लिए मैंने डाला हुआ, तो दैट दिमाग चले आप। सर वो 3000 किधर नहीं आएगा? 3000 कौन सा 3000? वो 3000 आएगा ना, वो लास्ट ईयर एसेट से आ रहा है, वो लास्ट ईयर एसेट और करंट ईयर एसेट। ये तो करंट ईयर का परचेज है 5200, तो पहले आप लास्ट ईयर से करंट ईयर 3000 लाओगे, 31 मार्च 06 है ना डेट उसका। हाँ तो सर मतलब बैलेंस शीट में तो ये सब आप ऐड ही करोगे ना? हाँ ऐड ही होगा। लास्ट ईयर से 3000 ब्रिंग इट टू दिस ईयर, देन ऐड 5200 परचेज, फिर 8200 हो जाएगा, और फिर डेप्रीसिएशन भी दिया हुआ है आगे 10%। सोच के बताओ, हाउ विल यू चार्ज डेप्रीसिएशन ऑन दिस फर्नीचर? 3,000 के पूरा और 5,200 पे हाफ ईयर का। 3000 पे कितना? फुल ईयर। फुल। व्हाट अबाउट 5200? हाफ ईयर। 6 months. Why 6 months? You bought it on 30th of 31st September. Look at the date. So October, November, December, Jan, Feb, March. 6 months. Is this clear? सर Yes. सर अभी समझो रिसीट्स में अगर दिया तो सेल ऑफ फर्नीचर, तो वो तो फिर- लास्ट ईयर का 3000 में से माइनस होता बुक वैल्यू। क्यों होगा इसमें से 8,200 में से माइनस होगा? नहीं हो सकता, क्योंकि व्हाट इज द अजम्पशन? सेल और परचेज के बारे में अगर कुछ डेट नहीं दिया है तो वी अज्यूम इट इज हैपनिंग ऑन बुक वैल्यू। वैल्यू तो है ही, वो तो करना ही है। डेट कौन सा अज्यूम? फर्स्ट डेट ऑफ द फर्स्ट। और ये 5200 वाला आपने खरीदा कभी है? 30th सितंबर। सेल कभी हुआ है? फर्स्ट। पहले वो 3000 में से सेल होगा, फिर परचेज ऐड होगा, फिर डेप्रीसिएशन। बस यही था एडजस्टमेंट। अभी एंट्रेंस इज नॉट टू बी कैपिटलाइज्ड, तो इधर लास्ट ईयर के रिलेटेड पार्ट्स काफी हैं, इसलिए मैंने बोला कि बेटर इफ यू मेक लास्ट ईयर बैलेंस शीट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द सम। डबल बैलेंस शीट ड्रॉ कर लो सब लोग, पूरा फुल फ्लेजेड सम करो, पिक्चर एकदम क्लियर हो। डॉट्स दे दो। डॉट्स किस किस आइटम पे आएंगे पहले तो बताओ मुझे। सब्सक्रिप्शन, हाउ मेनी डॉट्स ऑन सब्सक्रिप्शंस? 2 डॉट्स और 1 डॉट? 1। करंट ईयर सब्सक्रिप्शन पे 1 डॉट आएगा खाली, रिसीवेबल का। ओके, लास्ट ईयर पे तो कुछ स्टिल इन अरियर है नहीं, तो करंट ईयर सब्सक्रिप्शन पे 1 डॉट, रेंट पे 2 डॉट, इलेक्ट्रिसिटी 2 डॉट, इंश्योरेंस 2 डॉट, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस 2 डॉट्स। फर्नीचर हाउ मेनी डॉट्स? 2 dots. Purchase and depre. Furniture 2 dots. Entrance fees 1 dot, needs to be capitalized.
Entrance fees 1 dot needs to be capitalized. Sir, needs not to be capitalized. Need not be capitalized, sorry. तो इनकम है, डॉट डाल दो. अभी एक हिडन एडजस्टमेंट है, उसका नोट बना दो. लोन टेकन फ्रॉम कृष्णा स्वामी, वर्किंग नोट 1. लोन टेकन फ्रॉम कृष्णा स्वामी at what rate? 10%. ठीक है. Calculate, check and compare interest on loan. Interest on loan क्या होगा? 2000 पे at the rate of 10% for how many months? कभी लिया हुआ है लोन आपने? When have you taken the loan? 1st October. तो 6 महीने का आएगा इंटरेस्ट 100 रुपया लेस इंटरेस्ट पेड. चेक, हैव यू पेड एनी इंटरेस्ट? हैव यू पेड एनी इंटरेस्ट साइड? No. No. Entire 100 is what? Outstanding interest of current year. What are the two effects of outstanding interest? Tell me. Add to loan and expenditure. Add to loan and expenditure. Add to loan and expenditure. Put a dot on loan. Put a dot on loan for that hidden adjustment. और And investment पे एक डॉट सेल है. Investment पे भी एक डॉट सेल है. या और इसमें जो पार्ट पेमेंट दिया है पेमेंट में, तो वो किधर रिकॉर्ड नहीं होगा ना फिर? वो किधर नहीं हो रहा है? वो क्यों नहीं हो रहा है? आप फर्नीचर में जो 5200 ऐड कर रहे हो ना, उसमें वो 4500 आ गया ना. तो मतलब कुछ ना, मतलब सिर्फ जो होगा वो एसेट में ही दिखेगा सब. इधर एसेट में 5200 4500 प्लस 7. सर ये इंटरेस्ट ऑन लोन या एक्सपेंडिचर में क्यों डाला? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का दो इफेक्ट क्या होता है? ऐड टू एक्सपेंस एंड लायबिलिटी, राइट? तो इधर इंटरेस्ट कुछ है एक्सपेंस में ऐड करने के लिए. फाइनल अकाउंट में पीएनएल डेबिट में डालते थे, याद है? ऐड टू एक्सपेंस एंड लायबिलिटी. तो इधर पीएनएल की जगह इनकम एंड एक्सपेंडिचर है. एक्सपेंडिचर में अगर कोई इंटरेस्ट होता तो वी वुड हैव एडेड टू दैट. कुछ है नहीं, तो एज इट इज टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एंड लायबिलिटी. सेम लॉजिक, समझा? तो पेएबल है, पीएनएल डेबिट की जगह इधर एक्सपेंडिचर है एंड लायबिलिटी. दूसरा बैलेंस शीट भी बना रहा हूं मैं नीचे. बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 06. ओके, लेट्स बिगिन. पेमेंट सर साइड ये लास्ट ईयर का बैलेंस शीट बनाना कंपलसरी है? इसमें कंपलसरी नहीं है. इस क्वेश्चन में तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही पूछा है, तो फेयर में आप खाली इनकम एंड एक्सपेंडिचर बताओ, इट्स ओके. ओके, बट जब आपको सम में इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड दिस ईयर बैलेंस शीट पूछा रहता है और कैपिटल फंड मिसिंग है, तो जरूर बनाना लास्ट ईयर का बैलेंस शीट. तो फिर बनाना पड़ेगा, भले ही एज अ वर्किंग नोट, बट इट विल कैरी मार्क्स. दे विल सी टू इट यू हैव प्रिपेयर्ड इट. ओके, क्वेश्चन में नहीं दिया है तो फिर यहाँ पे खाली इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओ, चलेगा. ये समय मैं आपको बनवा रहा सर हूँ, मतलब हमको सब बनाना है ना तीनों? ये सब में सब बनाओ फॉर प्रैक्टिस. यस, ये सब में मैं बनवा रहा हूँ फॉर प्रैक्टिस. इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बोथ द बैलेंस शीट. ऑल ऑफ यू प्लीज मेक इट. ओके, काम आएगा फुल फ्लेजेड सम देखोगे तो. सैलरीज कहाँ जाएगी बताओ? Where will put salaries? Salaries are your expenditure. Is there any dot on salaries? Please check. No. No dot. So see the outer column, that will be 4160. Rent पे कोई dot है? Is there any dot on rent? Yes. Yes, there are two dots in fact. Last year's outstanding rent you subtract because that is included over your 180 rupees. 06 का 180 इसके अंदर पड़ा हुआ है, हटाओ. And add outstanding rent of 07, that will be 360. So 2040 आ रहा है क्या outer column? Please check. नहीं, हाँ सर 2040. हाँ सर.
2040, okay. Then electricity is your expense. So electricity is your expense. Electricity is 1280. इस पे भी there are 2 dots. Less outstanding electricity of last year, that is 640. पड़ा हुआ है, हटाओ. Plus outstanding electricity of current year, that is 200. ये ऐड कर दो. तो 840 आ रहा है. आउटर कॉलम चेक करो जरा. Is it 840? Yes. Okay. Then postage and stationery, that is expense. Postage and सर yes. सर सब्सक्रिप्शन में अगर लास्ट ईयर का कुछ एक्स्ट्रा दिखता, मतलब इधर तो 250 दिख रहा है, तो अगर समझो 250 की जगह 300 दिखता, आपने जैसे 50 बोला. रुपया स्टिल इन अरियर्स बोला तो सही है. अच्छा करंट सर. ईयर बैलेंस शीट ऐसे. अच्छा ओके. लास्ट ईयर में 300, ये साल में 50. इंश्योरेंस प्रीमियम. टू इंश्योरेंस प्रीमियम, देयर आर 2 डॉट्स 180 रुपीज पे. एक तो लास्ट ईयर प्रीपेड इंश्योरेंस, वो ऐड. प्रीपेड इंश्योरेंस 06 50 रुपीज. एंड करंट ईयर का प्रीपेड इंश्योरेंस 07 का subtract, that is 70 rupees. Outer column it will be 160 rupees. Then you have general expense, that is 460. पार्ट पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ न्यू फर्नीचर. अब देखो फर्नीचर का पूरा स्टोरी मैं साथ में खत्म कर रहा हूँ. फर्नीचर की शुरुआत कहाँ से होगी ये बताओ. फ्रॉम वेयर विल यू स्टार्ट विद द फर्नीचर एडजस्टमेंट? लास्ट ईयर से. तो पहले लास्ट ईयर बैलेंस शीट पे जाओ, मेंशन करो फर्नीचर कितने का था. फर्नीचर आपका 3000 रुपीज का, राइट. तो लास्ट ईयर का फर्नीचर यू ब्रिंग इट टू दिस ईयर. फर्नीचर 3000. देन sale purchase debris. Is there any sale of furniture? No. Is there any purchase of furniture? Yes. Ideally purchased furniture should appear on the payment side. लेकिन यहाँ पे दिया कि 5200 का खरीदा है और पेमेंट में 4500 दिख रहा है. तो ऐड तो आप 5200 ही करोगे, चाहे कैश पे खरीदा हो चाहे क्रेडिट पे खरीदा हो. एसेट तो खरीदा है. ये 5200 क्या है, 4500 एंड क्या है 700 ऑन क्रेडिट. तो साथ ही में आप यहाँ पे इमीडिएटली मेंशन कर दोगे लायबिलिटी में क्रेडिटर फॉर फर्नीचर. क्रेडिटर फॉर फर्नीचर 700. 5200 में से आपने 4500 पे किया हुआ है, 700 देना बाकी है. अगर नीचे भी 5200 पेमेंट में भी 5200 होता तो झंझट ही नहीं होता. तो जितना खरीदा उतना पे किया. अब तक के सब में यही होता था. इस सब में ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये क्रेडिटर आ जाएगा. ठीक है. तो आपका टोटल फर्नीचर हो गया अभी 8200. इस पे डेप्रिसिएशन 10%. हाउ विल यू डू दैट? ओरिजिनल फर्नीचर पे फुल ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर से आ रहा है. और एडिशनल फर्नीचर, अच्छा कितने पे लोगे डेप्री? 4500 की 5200? 5200. Obviously 5200, right? Because your asset value is 5200 ना. Asset value is 5200. एसेट वैल्यू पे डेप्री करते हो. कैश पे खरीदो या क्रेडिट पे खरीदो, एसेट तो आ गया ना, पैसा देना बाकी है. डेप्रीसिएशन तो एसेट पे लेते हो ना. 5200 पे 10% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 6 months. That will be 260, I think. What's your total depreciation? 560 rupees. So this comes to 7640 in the outer column. Please check. 7640 आ रहा है आपको? हाँ. 7640. Did you all get this adjustment of furniture? What was the different part that you understood? What was the different part in furniture? Normally जितना खरीदते हो उतना पेमेंट में दिखता है, यहाँ पे नहीं दिख रहा था, तो some portion was payable, outstanding. Then you have balance at bank, that is current year asset, cash at bank. This is 2400.
Opening balance will go to last year asset, cash at bank, that is 1020. Entrance fees not to be capitalized. Not to be capitalized Monday, you have to put it under income by entrance fees. Not to be capitalized, that is 1000. Subscriptions. सर आप वो एडजस्टमेंट को ऐसे नहीं ले सकते कि उसको कैपिटल फंड में ऐड नहीं करना, बट इन नॉर्मल लायबिलिटी आ सकता है वो। ना 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 कभी नॉर्मल लायबिलिटी में बहुत रेयरली क्वेश्चन में दिया है तो ही लेने का। एंट्रेंस फीस है ना, उसका पर्पस कभी स्पेसिफाइड नहीं होता। ये सब चीजों से ही आपका कैपिटल फंड बनता है। देखो, सोल प्रोप्राइटरी में कैपिटल कैसे आएगा? ओनर डालेगा। पार्टनरशिप में कैपिटल कैसा बनेगा? ओनर पैसा डालता है। तो वैसे एनपीओ में कैपिटल बनेगा कैसा? यही सब पैसे से। एंट्रेंस फीस आएगा, डोनेशन आएगा, लाइफ मेंबरशिप फीस आएगी, लेगेसी आएगी। तो ये एंट्रेंस फीस दो ही जगह पे जा सकता है, या इनकम या कैपिटल फंड में ऐड। स्पेसिफाइड पर्पस वाला होता ही नहीं है ये जनरल फंड सर में। तो इधर इनकम है, उसका मतलब ये है ना कि वो रेकरिंग है फिर। हाँ, इधर इनकम है मतलब रेकरिंग है। यस, एब्सोल्युटली। इधर इनकम है मतलब रेकरिंग। बताया था ना आपको एग्जांपल, कोई बड़ा सा क्लब है, हर साल मेंबर्स आ रहे हैं, हर साल एंट्रेंस फीस रिसीव कर रहे हो, तो रेकरिंग रिसीव। तो इनकम। छोटा क्लब है, मेंबरशिप बंद कर दी है, वन टाइम एंट्रेंस फीस ली, फिर खत्म, अभी घड़ी घड़ी नहीं आएगी, तो कैपिटलाइज। तो दोनों जगह जा सकता है एंट्रेंस फीस। क्वेश्चन में दिया होगा आपको, नहीं दिया तो नोट लिख देना कैपिटलाइज करके। सब्सक्रिप्शन 6, 7 एंड 8। 6 का किधर जाएगा? 250 रुपीज। बताओ, 6 का किधर जाएगा? 250। 06 का जो अभी मिला है वो कहाँ लास्ट जाएगा? ईयर बैलेंस शीट एसेट। लास्ट ईयर बैलेंस शीट एसेट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 250। ओके, इसमें से कुछ भी करंट ईयर में आएगा? 250 में से एनीथिंग वी विल राइट इट इन द करंट ईयर? नो, नथिंग इज स्टिल इन अर्लियर। देन वी हैव 7 का। 7 का जाएगा इनकम में, इस पे डॉट भी है। बाय सब्सक्रिप्शन कितना है? तो दिस इज 3050। इस पे ऐड कर लो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 400 है ना करंट ईयर का? नहीं, 400 है। यस, तो ये हो जाएगा आपका 3450। देन वी हैव 08 का। 08 का किधर जाएगा? वेर विल पुट 08 का? liability. Subscription received in advance, that is 350. Subscription received in advance, that is 350. Then we have sale of investment. मुझे एक बात बताओ, कोई भी एसेट का सेल हुआ है वो कहाँ से आएगा? और अपना लास्ट ईयर लायबिलिटी में लिखना है। हाँ, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में लिखना है ना आपने। करंट 06 ईयर में। में हाँ, लिखना है। करंट ईयर। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, करंट ईयर। सब 350 प्री रिसीव्ड ऑफ करंट ईयर है, करंट ईयर में लिखना है। एंड 3650 इग्नोर करना है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या अज्यूम करोगे, कहां से टपक रहा है? जो सेल हुआ इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट कहां से आया होगा? लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर में लिख दो पहले इन्वेस्टमेंट। सम में कहीं पे नहीं दिया है ये आइटम, ये सम में कहीं पर भी नहीं है आइटम। स्टिल आपको अज्यूम करना है कि ये लास्ट ईयर से आ रहा है। क्यों? बोलो। सेल फर्स्ट डेट को होता है। सेल फर्स्ट डेट को होता है, और जो सेल हुआ है वो एसेट अगर फर्स्ट डेट को सेल हुआ है तो ऑब्वियसली कहां से आया होगा? लास्ट ईयर से। सिंपल सा अजम्पशन। तो लास्ट ईयर एसेट में इन्वेस्टमेंट कितना अज्यूम करोगे? 7500 की 5000। 5000। वाई 5000 बुक वैल्यू। जितने का बेचा, जितने में बेचा वो नहीं, जितने का बेचा 5000। तो ब्रिंग इट टू दिस ईयर इन्वेस्टमेंट 5000। इस पे सेल हुआ है तो लेस सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। बुक वैल्यू कितना था? बुक वैल्यू मतलब कॉस्ट। हाँ, कॉस्ट बुक वैल्यू एक ही है। आज की डेट में क्या वैल्यू का था? 5000 का 5000 में बेच दिया तो आउटर कॉलम 0 नील। सर ये नहीं दिखा तो चलता है?
दिखाओ ना, बैलेंस शीट बना रहे हो तो दिखाओ, लास्ट ईयर से करंट ईयर में आया फिर सेल हुआ। ओके, बैलेंस शीट ही नहीं बना रहे हो तो ठीक है, बट बैलेंस शीट में है दिखा रहे हो तो ये इट विल कम, सेल फिर परचेज फिर डेबिट पूरा दिखाने। देन जो प्रॉफिट है वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट विल गो टू योर इनकम बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, 2500। कैसा मिला, 5000 का था, 7500 में बेचा। दिस क्लियर? सर लॉस नहीं हुआ, कम है ना बुक वैल्यू, हाँ तो लॉस होगा ना। अरे यार बुक वैल्यू मतलब नहीं नहीं सॉरी, सेल वैल्यू सर। सेल वैल्यू 7500। आई हैव रिटन 3650। अरे वो ऊपर सब्सक्रिप्शन का टोटल है, वो मैंने तभी बोला भी था तुमको, नीचे हो गया एक एक आइटम। टोटल ऑफ सब्सक्रिप्शन इज 3650, इग्नोर। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का वैल्यू देख लो सब लोग क्वेश्चन में, एक मिनट। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 7500, हाँ सेल वैल्यू नीचे शिफ्ट हो गया। एंड लोन अमाउंट इज 2000, लोन अमाउंट इज 2000, ठीक है। तो 5000 का 7500 में बेचा है, तो 2500 इज प्रॉफिट। फिर आता है लोन, वेयर डू यू पुट लोन, लोन टेकन लाइबिलिटी करंट ईयर, करंट ईयर लाइबिलिटी, इस पर भी डॉट है। लोन फ्रॉम कृष्णा स्वामी कितना था, 7 नहीं, दिस इज 2000 सॉरी। इस पे एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, दैट इज 100, दैट मेक्स इट 2100। फिर आ जाते हैं एडजस्टमेंट पे, रेंट ड्यू, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग 180, एक इफेक्ट था लेस फ्रॉम रेंट, दूसरा इफेक्ट लास्ट ईयर लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग रेंट 180, टिक इट आउट। 360 करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, एक इफेक्ट ऐड किया है रेंट को, दूसरा इफेक्ट करंट ईयर लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग रेंट 360, टिक इट आउट। इलेक्ट्रिसिटी ड्यू, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग 640, एक इफेक्ट लेस फ्रॉम रेंट, लेस फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड इफेक्ट लास्ट ईयर लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी 640। 200 current year outstanding electricity, one effect you have added it to electricity, second effect current year liability outstanding electricity 200. Subscription due 250, will you write it again, will you write it again guys, subscription due 250, you have already written or will you write it again, subscription 250, tell हो गया हो गया है, वापस लिखने की जरूरत नहीं है, रेपिटेटिव इंफॉर्मेशन है। लास्ट ईयर का रिसीवेबल था 250, ये साल मिल चुका है, नथिंग इज स्टिल इन अरियर्स। 400 का क्या होगा, 400 वन इफेक्ट इज ऐड टू सब्सक्रिप्शन, सेकंड इफेक्ट इज व्हाट, करंट ईयर एसेट, करंट ईयर एसेट 400, ओके, करंट ईयर एसेट। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, दो है, लास्ट ईयर प्रीपेड, करंट ईयर प्रीपेड। लास्ट year prepaid add to insurance and assets of last year, prepaid insurance 50 rupees last year asset, 70 is current year prepaid less from insurance, एक इफेक्ट दिया हुआ है, दूसरा इफेक्ट current year asset prepaid insurance 70। फिर आया इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमने लिखा हुआ है देख लो, लास्ट ईयर इन्वेस्टमेंट एसेट करंट ईयर लेके आया और फिर सेल कर दिया, प्रॉफिट भी रिकॉर्ड हो चुका है। फर्नीचर भी हमने किया हुआ है, लास्ट ईयर एसेट 3000 ब्रॉट इट टू दिस ईयर, फिर सेल किया, सेल परचेज किया, ऐड कर दिया, क्रेडिटर भी लिख दिया। डेप्रीसिएशन, नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन का एक इफेक्ट दिया हुआ है लेस फ्रॉम फर्नीचर, व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट ऑफ डेप्री, एक्सपेंस, ये बाकी है एक्सपेंडिचर, टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर दैट इज 560 sir, depre on furniture is 560, ठीक है। hope that is clear. Then entrance fees is not to be capitalized, we have already done that, that completes the problem। पहले तो opening balance sheet close करो and get the amount of capital fund, 9320 total you are saying, okay, 9320 is the total,
Capital fund 8,500. 8,500. 8,500 is capital fund. Okay, 8,500 is capital fund. Bring it to this year as opening capital fund. Tell me the total of income and expenditure. 8,650. 650 surplus or Deficit Deficit 1,700. 1,700 का deficit है. Perfect. By deficit, that is excess of expenditure over income. ये डेफिसिट सब्ट्रैक्ट करो आपके कैपिटल फंड में से. कितना है? 1700. तो कितना बचा? 6,800. एंड दिस शुड टैली ऑन 10510. 105. That is your full-fledged sum in front of you. Very, very, very important sum. ऐसे सम आपको आएंगे तो सिंगल या डबल बैलेंस शीट के साथ ही आएंगे. ओके, सर बैलेंस शीट दिखाओ. बैलेंस शीट देखो. सर या बोलो. लेक्चर है सर. एसके सोमैया. हाँ सर. ठीक है, एसके सोमैया. सर आपने सर, वो वो हिडन एडजस्टमेंट का 2 इनकम एंट्री किया एक्सपेंडिचर आपने? दिखाओ ना. अरे हिडन एडजस्टमेंट का बाकी है. सॉरी, एक्सपेंडिचर साइड रह गया ना मेरा. हाँ सर. एक्सपेंडिचर साइड, हिडन एडजस्टमेंट. सॉरी, एड टू लोन किया है, एक्सपेंडिचर साइड रह गया. हैव यू डन इट? Yes, sir. Yes, sir, we have है ना done. वो 100. ओके. आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम कृष्णा स्वामी. आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम कृष्णा स्वामी 100. या प्लीज चेक. check. Come to sum number 11. Sir, tallying amount 10,510. 10,510. Perfect. Tallying amount is 10,510. These are the balance sheets. $10,510 पे टैली हो रहा है. 11th sum. Look at the sum number 11. आज का होमवर्क ऐसा ही टाइप का सम आएगा. दिमाग लगा के सॉल्व करना है और खुद से सॉल्व करना है. कोई जल्दी भेज दिया तो छाप के भेज दिया तो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम. ओके, इससे अच्छा मत ही करो. बैठो ऐसा ही. बोर्ड्स को सीरियसली नहीं लेना है. मत लो, गार्डन में जाके बैठो. अभी तो ओपन भी कर दिया है सब. 11th sum number 11. Following is Young Men's Library cash account for the year ended 31st March 2007. ठीक है, देख के बताओ ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है कि नहीं. बताओ. बनानी है. ओपनिंग बैलेंस शीट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा. ओके, पेयर पार्ट में इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट. एज अ वर्किंग नोट यू हैव टू मेक ओपनिंग बैलेंस शीट to find out your capital fund. Salaries and wages. Answer fast. Salaries and wages. Expense. Rent expense. Investments, assets. Stationery expense. Electric charges expense. Books. Asset. Books are always asset. Books are never your expense. कभी मन हो लाइब्रेरी में जाके देख के आना. कॉलेज 30-20 साल किताबें पढ़ी होंगी वहां. ठीक है, बुक्स आर एसेट. देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. एकदम दिमाग लगाना और सोच के बताना. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 700 कहाँ जाएगा? सर कुछ नहीं आएगा ना. थिंक कहीं तो जाएगा. लाइबिलिटी ऑफ करंट ईयर. लास्ट ईयर. सर Last करंट ईयर तो year. पे किया ना. गॉन. करंट ईयर लाइबिलिटी बोला मतलब गॉन. अरे बंधुओं, वो कैश लास्ट ईयर लाइबिलिटी. कैश अकाउंट में आप करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कैसा पे कर सकते हो?
करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग का मतलब ही यही है कि देना बाकी है, तो वो कौन सा आउटस्टैंडिंग होगा? लास्ट ईयर। बत्ती चमका। वो ट्रायल बैलेंस नहीं है फाइनल अकाउंट्स के जैसा, वो कैश अकाउंट है, कैश। उधर आपने इतना पे किया है 700 रुपया, अभी तो पे किया है, तो आउटस्टैंडिंग कैसा हुआ? करंट ईयर का तो आउटस्टैंडिंग हो ही नहीं सकता कि वो तो पेएबल है, अभी तक पैसा ही नहीं दिया, तो कौन सा आउटस्टैंडिंग रहेगा? लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग ये साल पे किया। याद है आपने एक दो सब में किया, एक्सपेंसेस ऑफ 06, एक्सपेंसेस ऑफ लास्ट ईयर, होमवर्क में भी आया था, वो यही है। तो आउटस्टैंडिंग देख के कंफ्यूज नहीं होना है, वो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग नहीं है, हो ही नहीं सकता है। कौन सा आउटस्टैंडिंग है? लास्ट ईयर का अभी पे किया है। लास्ट ईयर का अभी पे किया तो कहाँ जाना चाहिए वो? व्हाट इज द इफेक्ट? लास्ट ईयर्स बैलेंस शीट। लायबिलिटी, लास्ट ईयर्स बैलेंस शीट लायबिलिटी। ओके, लेस वेस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई और एक्सपेंस है नहीं जिसके अंदर ये इंक्लूडेड है, यही है खाली 700, यही पे किया है। लास्ट ईयर का पेबल था, ये साल पे किया है। या कैश किधर जाएगा? कैश करंट ईयर एसेट। ओपनिंग कैश कहाँ जाएगा? ओपनिंग कैश लास्ट ईयर एसेट। एडमिशन फीस के बारे में पढ़ो, कुछ दिया है क्या? एडमिशन फीस कैपिटलाइज। ना 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 ना, पूरा नहीं, 60%। 60% of the admission fees need to be capitalized, मतलब 40% income, 60% capitalized। सब्सक्रिप्शन कहाँ जाएगा? इनकम। कि ईयर वाइज है, एक साथ है। तो कौन सा एडजस्टमेंट करना है? सब एडजस्टमेंट करना है, प्लस वाला माइनस वाला, कौन सा? अब एडजस्टमेंट करना है। और भेलपुरी साथ में मिक्सचर है, अपने को फिल्ट्रेशन प्रोसेस करना है। लेक्चर ऑल हायर चार्जेस, income, miscellaneous income, interest on investments, income, come to the adjustments. Following is the Sir, further, yeah, अगर हम लोग को बाय प्रीपेड एक्सपेंस दिया होता तो फिर उसका क्या होता इफेक्ट? तुम बताओ मुझे कौन सा हो सकता है वो प्रीपेड? प्रीपेड मतलब पहले ही भर दिया एक्सपेंस, तो करंट ये ईयर का प्रीपेड हो सकता है कि लास्ट ईयर का प्रीपेड हो सकता है? प्रीपेड होता है, वो करंट ईयर का होगा ना, मतलब लास्ट ईयर पे किया होगा करंट ईयर का। लास्ट ईयर का अगर पे किया है करंट ईयर का, तो वो कौन से रिसीव पेमेंट में दिख रहा चाहिए? लास्ट ईयर के। तो यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका मतलब? हाँ, तो नेक्स्ट साल का हमने भरा है अभी, तो कहाँ दिखेगा? तो लायबिलिटी ना, नहीं प्रीपेड एक्सपेंसेस, सॉरी एसेट्स ना। जस्ट वन इफेक्ट ऑफ एसेट ऑफ करंट। सही सोचा। नाउ following further information was also available to you on 31st March 06, the library had the following assets. What is 31st March 06, guys? लास्ट ईयर। लास्ट ईयर ये एसेट थे का मतलब क्या हुआ? कहां से टपकेंगे ये? लास्ट ईयर के बैलेंस शीट से टपकेंगे। क्या क्या था? फर्नीचर था, तो लास्ट ईयर एसेट ब्रिंग इट टू दिस ईयर। बुक्स थे, लास्ट ईयर एसेट ब्रिंग इट टू दिस ईयर। इन्वेस्टमेंट्स थे, लास्ट ईयर एसेट ब्रिंग इट टू दिस ईयर। फिर सेल, परचेज और डेप्रिसिएशन अगर है कुछ तो। 3 एसेट थे। सब्सक्रिप्शन रियलाइज्ड इन एडवांस दिस ईयर अमाउंटेड टू 600। रियलाइज्ड इन एडवांस म्हणजे रिसीव्ड इन एडवांस। रिसीव्ड इन एडवांस। क्या करोगे इफेक्ट्स? माइनस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी, माइनस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन एंड लायबिलिटीज ऑफ दिस ईयर, current year received in advance. Outstanding liabilities on 31st March 07. What is 31st March 07? Current year. Current year outstanding. Salaries and wages and rent दोनों outstanding है। क्या करना है? Add to expense and liability. And liability. Current year liability. 60% admission fees किया हुआ है। Furniture and library books depreciated. What are the 2 effects of depreciation? Less from asset and expense. Less from asset and expenditure. अब मुझे एक बात बताओ, फर्नीचर पे कितना डॉट? 1 dot, 1 dot, 2 dot, yes, 3 dot, 1 just 1 dot. Why? depreciation, Very good, depreciation. Books पे कितना डॉट? 2 dots, Why? परचेज किया है और डेप्रिसिएशन। तो पहले क्या करना है? परचेज की डेप्री? परचेज। हमेशा ऑर्डर याद रखना, एसपीडी लास्ट ईयर का करंट ईयर में लाओ, फिर सेल, फिर परचेज, फिर डेप्री।
टाइम का लेना है? How many months डेप्री? फुल ईयर। फुल ईयर। 12 months. ओके, फुल ईयर 12 मंथ्स। अच्छा, इन्वेस्टमेंट्स पे कितना डॉट? 1 इन्वेस्टमेंट्स पे कितना डॉट? 1 परचेज 1 डॉट। वाई 1 डॉट? परचेज किया है। परचेज है, दिख रहा है? यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट ऐड करो। लास्ट ईयर से आ रहा है, समझ में आ रहा है? हेलो 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 हेलो। लास्ट ईयर देयर वाज इन्वेस्टमेंट ऑफ 20,000, यू ब्रिंग इट टू दिस ईयर, एंड दिस ईयर पेमेंट में दिख रहा है, मतलब और खरीदा, that is 3,500, so add it up, so that will become 23,500. So investment पे 1 dot for purchase, okay? So I'll repeat the dot: furniture 1 dot, books 1 dot, sorry, books 2 dots, investment 1 dot, subscription पे कितना dots? 1 1 dot. 1, प्री रिसीव्ड है, प्री रिसीव्ड है। फिर एडमिशन फीस पे 1 डॉट, ब्रेकअप दिया हुआ है, एडमिशन फीस पे 1 डॉट, सैलरीज एंड वेजेस और रेंट पे 1-1 डॉट, सैलरीज एंड वेजेस एंड रेंट पे 1-1 डॉट। बस बस करो, फिनिश इट ऑफ 10 मिनट्स, वाइंड अप अभी के अभी, फटाफट बोलो नम्र, व्हाट इज द डाउट? हाँ सर, अभी समझो इसमें रिसीव्ड इन एडवांस इनकम दिया रहता, तो कहाँ वो कहाँ नेक्स्ट कहाँ कहाँ? रिसीट्स में ओके, रिसीव्ड इन एडवांस दिया रहता, तो वो नेक्स्ट ईयर का इनकम अभी मिला, तो सब्सक्रिप्शन जैसे सब्सक्रिप्शन जैसे ही परफेक्ट। इधर जाएगा, सर आउटस्टैंडिंग रहता तो इधर जाएगा, वो बोल पहले। करंट ईयर लायबिलिटी में जाएगा वेरी ना गुड, receipt। परफेक्ट। और लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग रहता तो जैसे सब्सक्रिप्शन में करते वो Same. ब्रेकअप होता है, ब्रेकअप करके दिया है तो सेम, लास्ट ईयर एसेट। लास्ट ईयर एसेट, परफेक्ट। इंक्लूडेड है तो माइनस भी करने का, ब्रेकअप है तो खाली एक इफेक्ट, लास्ट ईयर एसेट। तो दिखता नहीं है वैसे, आपने बोला कि आउटस्टैंडिंग ही दिखते हैं मोस्टली। क्या नहीं दिखता है? प्रीपेड का भी दिखता नहीं है ना एक्सपेंसेस में, बहुत रेयर दिखता है ना। बहुत रेयर Prepaid. दिखता है, यस, बहुत रेयर दिखता है। प्रीपेड का भी अलग से ईयर वाइज नहीं दिखता है, इंक्लूडेड दिखता है। इंक्लूडेड हमने किया ना बहुत बार, माइनस करते हो ना आप एक्सपेंस नॉर्मली, प्रीपेड देता है। अभी अभी क्या, प्रीपेड इंश्योरेंस, लेस फ्रॉम इंश्योरेंस एंड एसेट, इंक्लूडेड है वो, ईयर वाइज नहीं। चलो 10 मिनट्स, बोथ द बैलेंस शीट्स खुद से करना है विदा किसी की मदद के, कम ऑन। ऐसा ही हम एक्सपेक्ट करो बोर्ड्स में, यह आ गया तो ऑलमोस्ट ज्ञान प्राप्त हो रहा है आपको। सर और भी टाइप के सम्स बाकी है हमारे। यस बॉस। सर होमवर्क कौन से टाइप पे है? और भी टाइप मतलब क्या है, चीजें यही है, कंसेप्ट यही है, कंसेप्ट सब हो चुका है अपना, अभी खाली उसको डेटा को इंटरप्रेट करना आना चाहिए क्वेश्चन पढ़ के, समझा? कुछ नया नहीं है अभी एनपीओ में, यही था जो अब तक सीखा है, वही है कंसेप्ट। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीवेबल, लास्ट ईयर का एसेट, दिस ईयर सेल, परचेज, डेप्री, कैपिटलाइज, नॉट कैपिटलाइज, यही है, खत्म। अभी खाली क्वेश्चन पढ़ के दिमाग में समझ में आना चाहिए कि ये क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन, कौन सा आइटम किधर है, इंक्लूडेड है कि नहीं है, ये देखने में समझ में आना। सर और होमवर्क किस पे बेस्ड है, ये सब पे? होमवर्क आज के जो 3 प्रॉब्लम मैंने किए उसके ऊपर बेस्ड। कितने समय होमवर्क में? एक ही बेटा, एक। आराम से करना है अपने को, कोई घाई नहीं है पोर्शन, गोइंग ऑन स्मूथ पेस, आराम से जा रहे हैं। बाय अक्टूबर एंड टारगेट है पोर्शन कंप्लीट करने का, नवंबर एंड दिसंबर इज रिवीजन, January and February is prelim. Mostly your board exams will be postponed to April this time, from Feb to April. The news आ रहा है, हवा में है, नहीं सर डेट आ गया है, राजू सर ने बोला। सर पर वो टेंटेटिव डेट्स है, टेंटेटिव है, फिक्स नहीं हुआ है। हाँ टेंटेटिव, कुछ फिक्स नहीं हुआ है, शायद अप्रैल बोल रहे हैं। अप्रैल बोला सर ने कि फरवरी बोला? मार्च बोला। और मार्च बोला। मार्च एंड से अप्रैल में जा रहा है वैसा वाला। 5th मार्च से 17th मार्च बोला। नहीं 5th मार्च वाला है, अप्रैल से आ रहा है डेट। सर कोई Tentative ही है सर अभी तो तो। बोल रहे दिसंबर में होगा। ये दिसंबर में बोर्ड्स? नहीं नेक्स्ट ईयर दिसंबर। वो तो फिर भी पॉसिबल है नेक्स्ट ईयर दिसंबर। सर पर अभी कैसे लेंगे, अभी दिसंबर तो कैन बी 144 आर्टिकल लागू हो गया। 144 आ गया और रहेगा अभी वो। सर तो जितना Basis पोस्टपोन कितना होगा है? उतना हार्ड ही होगा ना पेपर। जितना पोस्टपोन होगा उतना इजी होगा। सर ज्यादा टाइम मिल रहा है ना पढ़ने को। हाँ वही पढ़ाई कहाँ हो रही है?
तुमको ऐसा फैसिलिटी है अभी, ऑनलाइन कॉलेज, ऑनलाइन लेक्चर्स, बाकी सब पोर्शन पूरा बढ़ा इंडिया दिया का ना सोचो सबका। ना। सर हाँ, कितना पोर्शन बढ़ गया लास्ट ईयर से। पोर्शन बढ़ गया और कितना लोगों के पास है ही नहीं है फैसिलिटी। पैन इंडिया का सोचो ना, कोविड खाली बॉम्बे में थोड़ी है। इंडिया में 70 लोग विलेज में रहता है, साला इधर इंटरनेट नहीं पकड़ता है स्पीड में, उधर क्या इतना पढ़ाई अभी ऑप्टिक फाइबर चालू होने वाला है ना। होगा। पैन इंडिया आया तब भी इधर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, 30% इंडिया में लोड शेडिंग होते रहता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। यूथ तो वो पेपर का भरोसे रहने का ही नहीं है अपने को फुल फ्लेजेड विराट कोहली से खतरनाक मेहनत करने का है, आगे जाके काम आएगा। पेपर का भरोसे रहेगा वो तो स्कोर करके निकल जाएगा, आगे क्या फिर? आगे कोई थोड़ी बोलेगा कोविड बैच स्पेशल ट्रीटमेंट, हो गया कोविड खत्म, पढ़ाई किया वो काम आएगा। चलो उड़ाओ उड़ाओ, कम ऑन। सर ये सम के लिए कितना टाइम लगना चाहिए? ये सम के लिए आइडियली मैं पूरा बोल रहा हूँ स्टार्ट टू एंड, स्क्रैच से डिस्कशन, कॉलम्स, मार्किंग, पूरा टैली के साथ 20 to 25 मिनट्स मैक्सिमम। अभी मैंने जो टाइम लिमिट दिया था वो फॉलो किया कि नहीं पेपर में 80 मार्क्स वाले में? सर नहीं किया सर, पर हुआ ही जैसे नहीं, जैसे होगा ज्यादा ही यहाँ पर हुआ। हुआ ध्यान ही नहीं रहता है। कितना लग रहा था ज्यादा? 5 मिनट, 10 मिनट? 5 से 10। 5 सर मिनट सिंगल लगे सिंगल तो मिस्टेक टेस्ट दे होता है रहे थे उसमें तभी extra इजी time लगता पड़ रहा था, पूरा एक साथ में आया तभी मालूम पड़ा। पूरा एक साथ ही लिखना है ना, इसके लिए दिया एक मैराथन। लेकिन सर हमें वो ध्यान में ही नहीं रहता है वो टाइमिंग। जिसको स्पीड का इश्यू है ना उसको वो टाइमिंग इम्पोर्टेंट है, जिसका पेपर कंप्लीट हो जाता है उसको प्रॉब्लम नहीं है। सर लेकिन आप देता भी कैसे हो, मतलब 80 मार्क्स का 2 hour 15 minutes। पेपर मैंने ना तुमको प्रेशर में ही रख के डाला था। ये पेपर 2 hour 30 मिनट्स का 2 hour 15 मिनट्स में, ऑलमोस्ट 90 मार्क्स का 80 मार्क्स में, तो आई हैव मेड इट डिफिकल्ट, इतना डिफिकल्ट और इतना कम टाइम जानबूझ के दिया है। तो इसमें तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुमको नॉर्मल क्वेश्चंस इजी, पीस ऑफ माइंड, आराम से सॉल्व करके प्रेजेंट करके कर सकते हो। ये उस तरीके से होना चाहिए, इतना कैलिबर बनाओ, डेवलप करो, इतना प्रैक्टिस हार्ड। इजी इजी सब करोगे ना, माइंड भी फिर इजी लेम हो जाएगा, लेथार्जिक, अरे ये तो इजी है, इसको तो इतना ही है। फिर कहीं कुछ टफ आ गया, बम्बू बत्ती गुल। यू शुड डू ऑलवेज डिफिकल्ट। सर हो गया तो जाऊं? किसका हो गया बेटा इतना जल्दी 7 मिनट सर में? मेरा। धृति हाँ 7 सर। मिनट्स। यही रीजन है मेरे को लगता है पेपर में सिली मिस्टेक का तुम्हारा। सर ગાય ગાયમાં મમ્મી કે ગાય ગાયમાં બધું કરી આવે પછી સિલી મિસ્ટેક ખબર પડે। फुल मार्क ला सकती हो, व्हाई आर यू डूइंग घाई धृति? अभी का टेस्ट का ही मैं बात कर रहा हूँ। सर थोड़ा टाइम बैरियर था ना थोड़ा, अभी क्या टाइम? मतलब टाइम कम पड़ा थोड़ा। अच्छा ये टाइम तुमको भी टाइम कम पड़ा ऐसा? हाँ 10-15 मिनट। इतना? हाँ सर वो इधर सोचने में टाइम गया रहेगा या टैली नहीं हुआ रहेगा, उसमें किया रहेगा भी। वो फाइनल अकाउंट्स टैली नहीं हुआ, फिर एंड में हो गया। हाँ ये एक और चीज इंपॉर्टेंट है, कभी भी कोई सम टैली ना हो ना प्रेशर में, तो उसके पीछे भागो मत। एक अटेम्प्ट ट्राई करने का, नहीं हुआ छोड़ दो, गो अहेड, कंप्लीट द एंटायर पेपर, कम बैक अगेन। वो ठंडे दिमाग से फास्ट टैली हो जाएगा, नहीं तो वो टेंशन में रहता है दिमाग, आगे भी कंप्लीट करना है, पीछे का भी खराब हो जाएगा। तो ये सब टैक्टिक्स रहता है। पेपर में टैली नहीं हुआ तो जाओ आगे, पूरा कंप्लीट करो, लास्ट में आओ वापस। ये सब डोंट वेस्ट मोर देन 1 अटेम्प्ट। एक अटेम्प्ट में टैली हुआ ठीक है, नहीं हुआ बढ़ो आगे, कंप्लीट करो, बाद में आओ।
उधर ही इधर ही करेगा ना 10-15 मिनट, तो फिर पिछला का कल्याण हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट ऐड करना है। बुक्स में भी बुक्स ऐड करना है। आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का है। कैश करंट ईयर का है। ओपनिंग 4500 है। सर हो गया। 1 मिनट। एडमिशन फीस का प्रेजेंटेशन देख लो पहले, पूरा इनकम में दिखाना है आपको 3500 लेस 60% कैपिटलाइज। बाकी 60% इधर ऐड। Subscription is income. Less pre-received. Pre-received या received in advance is one and the same. 600, 18,900. Lecture all higher charges. Miscellaneous income. Interest on investments. Last year furniture था 5,500. Brought it to this year. डेप्री है ना फर्नीचर पे। सेल नहीं है, परचेज नहीं है, डेप्री है। बुक्स लिख दिला। 75 depreciation। एक ही सेकंड ना। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग salaries and wages, outstanding rent and बचा depreciation, furniture
books खत्म check बोलो ओपनिंग बैलेंस शीट का टोटल 75,000. कैपिटल फंड 74,300. इधर का क्लोजिंग बन गया इधर का ओपनिंग टोटल ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर 24,410. सरप्लस और डेफिसिट Deficit 660. 660 Hmm. deficit is 660 outer column 75,740. that is on 78,290. check बोलो any doubts क्लियर है आ रहा है जम रहा है खुद से आया रिया सर कीर्ति एक मिनट बैलेंस शीट दिखाओ लास्ट ईयर दोनों है साची को जम रहा है साची you were absent did you cover up Yes, sir. हेत को जम रहा है हेत शाह शाह टैली हेत हो गया टैली हेलो कर रही हो क्या हो गया हो गया सर हो गया ठीक है ऑल फॉर द डे कुछ डाउट्स है तो यू वेट होमवर्क आ जाएगा डे आफ्टर टुमारो मीट आउट से तो वेट अदरवाइज यू कैन लीव